सबसे पहले इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है, इकोनॉमी बढ़ गई, उसके बाद अर्बनाइजेशन होगा, बिकॉज द ट्रेडर्स विल बी कंसंट्रेटेड ऑन सिटी. Okay, so I have joined this institute recently, last week only. Before this, I was teaching at Delhi University. I also continue to be a guest lecturer there. And then I have completed my graduation and post-graduation from Delhi University only. And then I did my MPhil and PhD from Jawaharlal Nehru University. My specialization is in modern Indian history. But in Delhi University, I have been teaching many of such papers. Okay. Before that, joining Delhi University, I was working with Unacademy for some time, and then I joined Delhi University. So I'm recently here, and I'm asked to teach you medieval Indian history. Okay. So first of all, I will try to interact with you only that आपने यहाँ पे क्या-क्या पढ़ा है. So you are saying this is your first history class. So ancient history 3 लोग complete हो गया यहाँ पे. अच्छा, ancient history complete हुआ है. और जो बाकी लोग हैं उनको history complete नहीं हुआ है. क्यों? आपने नया ज्वाइन किया यहाँ पे 19 जुलाई 1. This is your first class, first history class. All right. So we will today is orientation class. So today we will start with the general idea of history and medieval will be our main focus point, है ना. और फिर से कल्चरल क्लास से स्टार्ट होगा, that will be on particularly medieval Indian history, है ना. जो लोग नए हैं उनके लिए एंशिएंट हिस्ट्री फिर से शायद होगा, टाइम बनेगा, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा, मॉडर्न medieval मॉडर्न. जो लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, रेज योर हैंड अगेन दोज हु हैव रेड एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. सो आप लोगों का medieval मॉडर्न कंप्लीट हो गया है. So you are done with modern, है ना. और जो नए हैं उनका कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है. एंड वर्ल्ड हिस्ट्री सबका रह गया होगा ऑलरेडी. तो एंशिएंट हिस्ट्री से आप शुरुआत करते हैं. ओरिएंटेशन क्लास है तो आज हम जनरल डिस्कशन करेंगे, जैसे कल हमने हिस्ट्री ऑप्शंस में किया था. देखिए, डू यू नो व्हाट इज मेजर डिफरेंस? बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस कमिंग इन यूपीएससी एग्जामिनेशन फ्रॉम हिस्ट्री. One is from let's say prelims. In prelims there are about how many questions from history? 15 to 20 roughly questions, and out of 100. So there are 15 to 20 questions are coming from history on an average basis. If you take example from 2013 to 2023, sometime it was 13, 14, 15. This year it was 13 questions were asked from history, but sometime it was 21, 22 questions were asked from history only. So one set of syllabus is prelims, जहाँ से सीधे objective questions आते हैं history में. Other set of is GS paper 1, where there are 20 questions, and this paper 1 comprises of 3 important topics. One is Indian history, world history is one topic. Other topic is Indian society and geography. 3 पेपर होते हैं पेपर 1 में. In these 3 papers, at least 5 questions are from history in GS paper 1. In this 5 paper, 1 question is from world history sometimes, but not all times. You will find that there are many years where the UPSC does not ask question from world history. So 1 question may be from world history, and there is a targeted theme on world history that we will discuss when we will try to understand world history. Okay, so 1 question out of 5 out of this 20, है ना. 8 question world history से रहता है. 1 or 2 questions will be from art and culture. So for GS paper 1, we don't need to read ancient Indian history, medieval Indian history. For GS paper 1, we have to read modern Indian history and art and culture and world history only. So we don't have to read ancient history, medieval history for GS paper 1. And for optional तो सारे होते हैं. So optional में आप लोगों में कितने लोग हैं history optional? There is only one student ना. आप भी optional में है. You are from optional history. So you were not yesterday. Are you in the batch or you are not? You have not joined this batch. All right. तो optional की हम बात ही नहीं करते हैं. Now let us focus on the GS paper 1 and prelims. So in prelims you don't have to focus on world history. You know that, है ना? Prelims में world history से questions नहीं आते. So world history आपको सिर्फ पढ़ना है GS paper 1 के लिए, and वो भी there will be only 1 question on world history, and the 15 मार्च से 20. तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. बट द पॉइंट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरी क्रोनोलॉजी. देयर इज नो सच डिफरेंस बिटवीन ऑप्शनल एंड प्रीलिम्स.
ऑप्शनल में क्या है, हमें सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, द सम इम्पोर्टेंट topics are added in optional, some ideological topics are added in optional paper, but the factual details is same. Even in prelims you have to do more labor than optional. In optional you have to write an essay in 150 words or let's say 250 words में दो options होते हैं, but in prelims you have to remember all the facts. एनालिसिस अलग होता है, तो द पॉइंट दोनों में सिलेबस में कोई डिफरेंट नहीं है ना, टॉपिक्स डिफरेंट है, एनालिसिस अलग है, अप्रोच अलग होता है। यहाँ पे हमें फैक्चुअल और इंटरप्रिटेशंस पे ध्यान देना है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑफ प्रीलिम्स, है ना। इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं आज। तो आप सबने देखा प्रॉपर अप्रोच, हमने देखा, आप हिस्ट्री ऑप्शनल से है ना, यूर ऑप्शनल, ठीक। तो हम जनरल हिस्ट्री पे बात करते हैं, जो एंशिएंट्स पढ़े हैं, पहले एंशिएंट पे बात करते हैं थोड़ा सा, देन वी विल मूव इनटू मॉडर्न। सो एज वी नो द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम विच पीरियड ऑफ टाइम? From Stone Age we started, है ना, when hunter gatherers were here, है ना, before Stone Age. Then we have Stone Age में there are 3 categories of Stone Age, right? Online batch, I hope you all are listening me. So there are 3 categories of Stone Age. One is Paleolithic, which starts from which date? 7 million years ago, मतलब 70 लाख साल पहले से स्टार्ट होता है Stone Age, है ना। And then we have Mesolithic, ये तब से स्टार्ट होता है, हाँ, 10,000 BC, and then Neolithic period starts, then it is followed by Chalcolithic, उसके बाद Indus Valley civilizations came, the pre-mature Harappan culture, this starts from 3500 3300 BC से स्टार्ट हो जाता है, and mature phase is from 2300 BC to 1750 BC। तो ये हमारा क्रोनोलॉजी एंशिएंट हिस्ट्री का है। दिस क्रोनोलॉजी इज फॉलोड बाय वैदिक लिटरेचर्स, है ना, आप सबने पढ़ा होगा। दोज हु हैव नॉट डन एंशिएंट हिस्ट्री हियर, यू मस्ट हैव रेड इन योर क्लास 12 10th में पढ़ा होगा। So the Indus Valley civilizations is followed by Vedic civilization, which starts from 1500 BC से स्टार्ट होता है, हाँ। ये जो क्रोनोलॉजी है, दिस क्रोनोलॉजी ऑफ वैदिक civilization is given by Max Muller. And who is Max Muller? He is a 19th century man. So before 19th century or before Max Muller, we had no idea that our Vedic civilization starts from 1500 BC to 1000 BC, है ना, 1500 से 1000। तो मैक्स मुलर ने क्या किया, इससे पहले हमारा जंक्शन से था कि वैदिक सिविलाइजेशन 4000 BC में हुआ हो, मतलब आवर जंक्शन बिफोर द मैक्स मुलर, ये था हमारा। इफ यू टॉक अबाउट बाल गंगाधर तिलक और सत्यस्वरूप मिश्रा, देयर आर 2 तिलक फ्रीडम फाइटर, आप जानते हैं उनको, है ना, ही इज अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सन। सो उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया था वैदिक कल्चर का, वो बोले इसका टाइम पीरियड हो सकता है 4500 BC, टाइम पीरियड ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, है ना। एक कैसे आपको समझ में नहीं, व्हेन यू रीड इंडस वैली सिविलाइजेशन, द नेचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अर्बन, इट वाज वेरी मच अर्बन, है ना, इतने स्टेट फॉर्मेशन थे, ट्रेड था, तो इट वाज अर्बन इन नेचर। एंड व्हाट वाज द नेचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? पेस्टोरल थे, ऑल द पीपल, आर्यंस वर एग्रीकल्चरलिस्ट, दे हैड काउज, है ना, हॉर्सेस बेस्ड थे। तो आपने नहीं देखा कि सोसाइटी कैसे मूव करती है, द सोसाइटी ग्रोज ना, फ्रॉम विलेज दे गो टू अर्बन सेंटर। सो हाउ कैन द इंडस वैली पीपल बी अर्बन एंड आफ्टर दैट, आफ्टर 500 years ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस, द इंडिया बिकम रूरल? ये कैसे संभव है? तो दिस इज हिस्टोरिकल डिबेट ऑन दिस, हमारे पास बहुत सारे एविडेंस नहीं मिले हैं इस पे, द रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन, पर पॉइंट है हम इसी डेट को लेते हैं। तो क्रोनोलॉजी में क्या हुआ, सबसे पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, एंड देन इट इंडेड। एक आप सबने नाम सुना होगा, मार्टिन व्हीलर का नाम सुना होगा, व्हीलर हु डिस्कवर्ड मेनी फोर्ट्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ही वाज अ आर्कियोलॉजिस्ट। और 1940 के टाइम पे जब राठौर दास बनर्जी और दयाराम सरनी क्या किए थे 1920-21 में, दे डिस्कवर्ड हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। सो आफ्टर 20 years ऑफ दिस, जो मोर्टिमर व्हीलर है, ही डिस्कवर अ फोर्ट, जो मोहनजोदड़ो में जो फोर्ट मिली है, एंड देन ही रेड वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर में इफ यू रिमेंबर, द मोस्ट ऑफ द हिम्स ऑफ वैदिक लिटरेचर इज डेडिकेटेड टू विच पर्सन? Indra. And there are how many hymns in the Rig Veda? 1028 hymns,
Out of 1028 hymns, 250 hymns are dedicated to Indra only. मतलब let's say 25% around है ना, मतलब 25% प्रोमिनेंस जो है इंदिरा को दिया जाता है. एंड इंदिरा इन द ऋग्वेदा इज कंसिडर्ड एज पुरंदर. पुरंदर मीनिंग क्या होता है? डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट. सो मोटिवन व्हीलर ने क्या बोला कि इंदिरा इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट एंड दीज पीपल आर आर्यंस, द वैदिक पीपल आर आर्यंस. तो ही गेव अ थ्योरी ऑफ आर्यन इन्वेजन. These Aryans, मतलब Indra was Aryan. So Indra came and he destroyed the fort of Mohenjo-daro, and that is why the Mohenjo-daro declined. ये बहुत सारा आर्गुमेंट है डिक्लाइन पे, आपने पढ़ा होगा इंडस वैली के डिक्लाइन पे बहुत सारा. एक तो फायर लग गया, डिजीज आ गई है ना, प्लेग फैला, बाढ़ आया है ना. देयर आर मेनी सच एग्जांपल्स वी मस्ट हैव रेड इन एंशिएंट इंडिया और वी विल डिस्कस लेटर ऑन. ऑल राइट. But the point is, Mortimer Wheeler ने क्या argument दिया? On the basis of the writings written in Rig Veda, Indra as a Purandar and he destroyed fort and Mohenjo-daro, he misperceived this argument. उनको लगा कि मोहनजोदड़ो को इंदिरा ने इन्वेट किया, डिस्ट्रॉय किया एंड फाइनली इंदिरा was the main god of Aryan people. इन्होंने डिफाइन किया. इस पे बहुत सारा डिबेट है, उस डिबेट पे नहीं जा रहे हैं. बट द पॉइंट ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई, Vedic civilization was established in India. All right. Vedic civilization में और important चीज क्या हुआ था? If you talk about religious people, Vedic time period क्या है? 1500 BC to 1000 BC है. What was followed by that? Later Vedic period, which starts from 1000 BC to 600 BC. What was the major social changes in this time? Social changes क्या हुआ था? सबसे पहले religious पे बात करते हैं. God, the Hindu god called Brahma, Vishnu, Mahesh, these people become very much prominent in the later Vedic period. In the Vedic literature, Aryans लोगों के लिए God importance नहीं थे, इनका मेंशन भी नहीं है ना. और बाद में चल के जो इंद्रा, अग्नि, सूर्या, ये सब जो गॉड थे, these gods were replaced according to prominence. replace complete खत्म नहीं हुआ था, but prominence किसको आ गया? ब्रह्मा, विष्णु, महेश. If you talk about the social क्लस्टम, जो सोशल चेंजेस हुआ इस टाइम पे, क्या हुआ था सोशल चेंजेस? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ था इस समय? कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम वाज नॉट एग्जिस्टेंट इन 600 BC, थोड़ा बाद में हुआ था. वर्ण सिस्टम तो हम जानते हैं. इफ यू रिमेंबर द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा विच मेंशंस पुरुषसुक्ता, जिसमें 4 वर्ण के बारे में बताया गया है. तो इट इज स्टिल, इट वाज ऑलरेडी देयर इन द वैदिक लिटरेचर. बट वेदा में इफ वी आल्सो रिमेंबर the first and 8th, 9th, 10th मंडल of the ऋग्वेदा are written later on. दूसरा से 7वां जो ऋग्वेद का जो चैप्टर है पहले लिखी गई थी और 10वां चैप्टर बाद में लिखी गई, तो उसका बाद में ऐड हुआ हो, है ना. और द पॉइंट है इस समय आयरन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज था. एंड आयरन केम इन इंडिया एंड इट चेंज द लाइफ ऑफ द पीपल. अब एग्जाम्पल ले सकते हैं आयरन से कैसे चेंज होता है. आयरन को हिंदी में क्या बोलते हैं और दूसरे वर्ड में संस्कृत में? लौह. एक आयस होता है, लौह. आयरन जो वर्ड है ये कब आया इंडिया में? जो आयरन जो इंग्लिश वर्ड है, मतलब आयरन का उत्पादन कब से स्टार्ट हुआ इंडिया में? इफ यू रिमेंबर दिस चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर, इंडियन इकोनॉमी. इट चेंज एवरीथिंग इन इंडिया व्हेन इट केम. कई सारे बुक्स में आपको 1500 से 1600 BC मिलेगा, बट एज पर द फैक्ट्स, हिस्टोरिकल एनालिसिस, एविडेंस के अनुसार 1200 BC इज द मेन डेट. 1200 BC विच वाज द पीरियड ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन. तो आयरन इंडिया में आया. आयरन आने से क्या चेंज हुआ आपको पता है? हाँ, ट्रेड शुरू हो गया. जैसे लेट्स से इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ दिस वन, not here. I was just searching a writing tool. I will give you one example. Let's say the iron came in around 1200 BC
The iron will increase the surplus value of agriculture. Once agriculture will be growing, what will happen? Trade बढ़ेगा. The trade will flourish. So first of all, there was the agricultural development, let's say, है ना? Agricultural development happened. Then this will lead to trade. And trade से क्या होगा? सबसे पहले इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है, इकोनॉमी बढ़ गई, उसके बाद अर्बनाइजेशन होगा, बिकॉज द ट्रेडर्स विल बी कंसंट्रेटेड ऑन सिटीज, अर्बन सेंटर, जहां से ट्रेड आसानी से हो सके. ट्रेड बढ़ने से सोसाइटी में क्या डेवलपमेंट होगा? हु वर द मेन कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी? जो 4 वर्ण था ना उस समय, वैश्याज वर द प्रोमिनेंट. टिल द वैदिक लिटरेचर ट्रेड 1200 में आया, बट इट विल टेक टाइम टू ग्रोथ, है ना. लेट्स से नाउ इट इज 700 BC, 500 वर्ष लग गया ग्रोथ होने में. सो व्हाट विल हैपन? ट्रेड फ्लरिश हो रहा है, तो वन पार्टिकुलर कास्ट, और वन कास्ट नहीं बोलते, वन पार्टिकुलर क्लास जिसे वर्ण बोलते हैं, तो वन पार्टिकुलर वर्ण विल डेवलप देमसेल्फ. कौन है? वैश्याज. इन दिस टाइम वी आर इन 700-800 BC. इन दिस टाइम हु वर प्रोमिनेंट? ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय. आप देखेंगे कई सारे ब्राह्मण, जैसे कई सारे जो ब्राह्मण आप जानते हैं ना, जब ब्राह्मणाज, जो दिस इज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द राइटिंग. ब्राह्मणाज क्या है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कास्ट और क्लास. ब्राह्मणाज इज अ राइटिंग, और राइटिंग इसे क्या पर्पस था ब्राह्मणाज का? This was the explanation of Vedas. So every Veda, मतलब there are 4 Vedas and all Vedas are different Brahmanans. And this is, जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में हम गाइड लेते हैं, कुंजी लेते हैं ना, तो दिस इज लाइक दैट. इट वाज मेड फॉर द स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो जैसे आर्यन काज है, तो ये एक्सप्लेनेशन है वैदिक लिटरेचर का सही से समझने की, ठीक है. तो मेनी ब्राह्मणाज विल टेल यू दैट द क्षत्रियाज वर मोर प्रोमिनेंट देन ब्राह्मण्स इन सम टाइम. कई जगहों में सबसे पहला स्टेज किसका आता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्याज एंड शूद्राज. कई जगह पे क्या होता है? इन द वैदिक लिटरेचर द ब्राह्मण्स वर प्रोमिनेंट, क्योंकि देयर वाज नो एग्जिस्टेंस ऑफ बिग राजा. बड़े राजा महाराजा होते नहीं थे वैदिक टाइम्स में, तो ब्राह्मण्स क्या करते थे? सैक्रिफाइसेस यज्ञ करते थे, तो दैट इज व्हाई दे वर वेरी मच प्रोमिनेंट. बट इन द लेटर वैदिक पीरियड क्षत्रिय का रोल चेंज हो रहा था. द क्षत्रिय वर बिकमिंग पावरफुल, तो व्हाई विल दे रिस्पेक्ट ब्राह्मण्स? तो सबसे बड़ा टकराव तो यहाँ था. यहाँ पे आपको कई सारे राइटिंग्स में मिलेगा. एंड अदर पॉइंट वाज दैट इन 700, 800 और 600 BC द वन कास्ट वाज वेरी मच बिकमिंग अफुलेंट, जिसका नाम था वैश्या. नाउ द वैश्याज आर नॉट वेरी मच पावरफुल इन द सोशल स्ट्रक्चर. तो वैश्या क्या है? सोशल स्ट्रक्चर में पावरफुल नहीं है. एंड वैश्याज आर वेल्दी नाउ, अमीर बन रहे हैं लोग, तो क्या करेंगे? विल दे रिस्पेक्ट ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय, और विल दे रिस्पेक्ट द रिलीजन अडॉप्टेड और प्रैक्टिस बाय ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय? नो. सो नाउ दे सपोर्टेड सम अदर पीपल. किसने सपोर्ट किया? उसी समय हमारा संस्कृत लिटरेचर का बहुत वर्चस्व था. द वेदास वर नॉट मीन फॉर एवरीवन. वेदास सब लोग सुन नहीं सकते थे. इफ यू रिमेंबर इन एंशिएंट इंडिया वी हैड श्रुति एंड स्मृति कस्टम्स. 500-600 BC में हमारे पास राइटिंग नहीं था, इंडस वैली में था, बट जो वेदास वगैरह जो है, द वैदिक लिटरेचर वर कंप्लीटेड बाय 600 BC. मतलब 1500 वर्ष लगे तकरीबन वेदास को बनाने में, लिखने में. तो पहले क्या था? श्रुति एंड स्मृति. वन इज वी हैव टू लिसन एंड अदर वी हैव टू रिमेंबर. तो जितने भी वैदिक लिटरेचर है सब क्या, किसका पार्ट है? श्रुति का. एंड स्मृति का पार्ट कौन सा? वेदंगाज, पुराण, इपिक्स, रामायण, महाभारत, है ना. तो ये सब जो पार्ट है, तो इन सब में इस टाइम पे क्या हो रहा था? एक नई तरह के रिलीजन आया इंडिया में. क्या नाम था? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन द 6th century BC. And in the Buddhism and Jainism, the main causes behind the rise of the Buddhism and Jainism was iron. आयरन से डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, ट्रेड हुआ, एंड द वैश्याज पीपल फंडेड एंड सपोर्टेड बुद्धिज्म. कोई भी धर्म को फ्लरिश होने में क्या चाहिए? फंडिंग चाहिए. अगर आप कोई भी रिलीजन बनाते हैं, जैसे इंडिया में बहुत सारे बाबा मिलते हैं अभी, है ना, तो हाउ बाबा बिकम फेमस?
ओनली वन ना, इफ ही गेट्स फंडेड. जैसे अभी एक सबसे फेमस बाबा कौन है इंडिया में अभी? हाउ ही इज फेमस? ही इज गिवन सिक्योरिटी सो मच. वाई? क्योंकि उनके फॉलोअर्स ज्यादा है. ही हैज फंडिंग एंड दैट इज द गवर्नमेंट आल्सो सपोर्ट्स हिम. एक गवर्नमेंट का आइडियोलॉजी भी इम्पोर्टेंट होता है. तो उस समय भी सेम था. अगर उनको सपोर्टर, फॉलोअर्स, फंडिंग नहीं मिलता, बुद्धा एंड महावीर कुड नॉट हैव बिकम सो मच फेमस. और वो नया रिलीजन बनाते तो सही, बट फेमस नहीं होता. तो दिस वेस्टर्न पीपल सपोर्टेड देम अ लॉट एंड दिस चेंज द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम. सोशल सोसाइटी चेंज हुआ बिकॉज वेस्टर्न वर नाउ मोर प्रोमिनेंट. 500 वर्ष बाद क्या हुआ? द ब्राह्मण्स ओनली दे कन्वर्टेड देमसेल्फ इनटू बुद्धिस्ट एंड जैनिस्ट. बहुत सारे ब्राह्मण्स एंड दे बिकम प्रोमिनेंट. जब ब्राह्मण्स बिकेम द पार्ट ऑफ दिस बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, 1000 वर्ष बाद क्या हुआ? बुद्धिज्म जैनिज्म इंडिया में डिक्लाइन होना शुरू हुआ. बुद्धिज्म जैनिज्म वाज फाउंडेड इन 6th century BC. आफ्टर 600 AD जब गुप्ता डिक्लाइन होता है, यू कुड टॉक अबाउट अर्ली मिडिवल पीरियड, डिक्लाइन होना शुरू होता है बुद्धिज्म जैनिज्म इंडिया से, और चाइना में फ्लरिश होता है. वेन ह्वानसेंग इंडिया में आए थे इन सर्च ऑफ त्रिपीठ, जो पीठ का है ना, 3 पार्ट में जो बटा हुआ है. तो ही केम हेयर बिकॉज इन चाइना ही हैड नो ओरिजिनल टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट था उनके पास त्रिपीठ का, वो फटा हुआ था. तो ही केम हेयर इन सर्च ऑफ दैट बुक सो दैट ही कैन टीच एवरी चाइनीज पीपल. जब वो इंडिया में आए, ही केम टू मथुरा, तक्षशिला गए, इन सब जगह पे मिला ही नहीं उनको त्रिपीठ का. मतलब इतना धर्म कम गया था इंडिया में. एंड देन फाइनली ही फाउंड इट इन पाटलिपुत्रा, बिहार में उनको मिला. सो मतलब द इम्पोर्टेंट टेक्स्ट आफ्टर 1000 years of the founding of Buddhism Jainism was not available in many stupas in India. स्तूपा और बिहार में मिला ही नहीं उनको. तो बेसिकली वी सी the reason which were the main reason behind the finding of Buddhism Jainism were the main causes behind the decline of Buddhism Jainism. Buddhism Jainism संस्कृत के खिलाफ आया था, है ना, बिकॉज संस्कृत वाज अ लैंग्वेज यूज्ड बाय ब्राह्मण्स एंड बुद्धिज्म ने क्या यूज किया? पाली एंड प्राकृत. And later on, the Buddhist monks, after 1000 years of founding of this Buddhism Jainism, they started using Sanskrit only. The language was also the main causes. Language was main causes behind the rise of Buddhism. Language was main causes behind the decline of Buddhism. तो हमें 600 BC आता था, क्या देखने को मिलता है? नए नए स्पेयर्स आते हैं, आयरन चेंज एवरीथिंग. The Buddhism Jainism was there. If we go into the political map of India, अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पे जाते हैं, कितना छोटा मैप था उस समय. इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ तक लिमिट था? नॉर्थ वेस्ट ओनली. इट विल कम टू हरियाणा, राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड सिंध और बलूचिस्तान वाले जो, तो नॉर्थ वेस्ट पे ही लिमिट था. वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या था? टाइम पीरियड 1500 के टाइम पे हमारा उनका जियोग्राफिकल मैप क्या था? जियोग्राफिकल मैप ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन वाज नॉर्थ इंडिया, नॉट इंडिया ओनली, नॉर्थ वेस्ट इंडिया ओनली. मतलब वो लोग उत्तर प्रदेश, कंटेम्प्रेरी उत्तर प्रदेश में नहीं आए थे. आई एम टॉकिंग अबाउट द वैदिक पीपल, है ना. इन द लेटर वैदिक पीरियड दे केम टुवर्ड्स ईस्टर्न इंडिया. एंड इफ यू गो टू द 16 महाजनपद पीरियड, वेयर देयर वर मोर देन डजन्स ऑफ महाजनपद, जिसमें 16 सबसे प्रोमिनेंट थे. उस 16 महाजनपद में भी आपको मिलेगा महाराष्ट्र से नीचे नहीं देखेगा रेफरेंसेस. सो इन द नॉर्थ इंडिया व्हाट वाज हैपनिंग, the 16 Mahajanpad were ruling, and in that one Mahajanpad became prominent. What was the name? Magad, and led by बिम्बिसार, अजातशत्रु, है ना, उदयन. तो इन सब का जो फेमस हुआ, तो मगध इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट हुआ. एंड देन व्हाट हैपेंड? द मौर्यास केम इन इंडिया. एंड देन मौर्य में 3 इंपॉर्टेंट सबसे रूलर है. कौन कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, हु कंसोलिडेटेड नॉर्दर्न इंडिया. देन वी हैव Bindusar, who consolidated Maharashtra region and all. And the last part was Kalinga, Ashoka, है ना. तो Kalinga was captured by Ashoka, and जब Kalinga Ashoka ने कैप्चर किया तो almost he had an empire of all India at least. साउथ इंडिया में चोलाज पांड्याज थे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इनका अफगानिस्तान तक रीजन था, बिकॉज वी हैव इंस्क्रिप्शंस इन द खरोष्टी लिपि इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो अफगानिस्तान वाले पार्ट है. तो ही हैड अ वास्ट एम्पायर, बट व्हाट हैपेंड लेटर ऑन? Again the decentralization process happened. और क्या हुआ? The many new empires were existing in the post modern period. कौन से empire थे? Satavahan was the most famous. Satavahan. So we are talking about the 1st century BC.
185 में डिक्लाइन हुआ मौर्य एंड फर्स्ट सेंचुरी बीसी में क्या हुआ, सातवाहनास केम, इंडो ग्रीक केम फ्रॉम देयर, कुशान्स केम फ्रॉम देयर, इंडो सैंथियन था और पालाज। तो ये सारे एम्पायर फेमस हुए इंडिया में, एंशिएंट हिस्ट्री में हमने ये देखा। एंड देन व्हाट हैपेंड फॉर द नेक्स्ट 400 years, I am talking about after 185 when Maurya's decline and till the time of 319 AD when Gupta Empire was found. इंडिया क्या था, बहुत सारे पार्टों में बटा हुआ था, वी हैड मेनी सच एम्पायर्स, है ना। इसी में वी सी देयर वाज मेनी डेवलपमेंट, आप सब एंशिएंट पर है, देयर वर मेनी डेवलपमेंट्स इन दैट टाइम एंड द गुप्ता केम। और गुप्ता में 3 भी सबसे इंपॉर्टेंट थे, कौन कौन थे, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, है ना, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त एंड ऑल। तो इस टाइम पे आके क्या हुआ, इंडिया फिर से सेंट्रलाइज होना शुरू हुआ। तो आर एस शर्मा बोलते हैं व्हेन दिस गुप्ता एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, जब इंडिया में फिर से सेम चीज हुआ दैट हैपेंड आफ्टर मौर्य। मौर्य के बाद क्या हुआ, डिक्लाइन शुरू हो गया और इंडिया में यहाँ पे भी सेम चीज होना शुरू हुआ। तो हमें नई तरह के डिसेंट्रलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। देयर वाज अ न्यू टाइप ऑफ अभी मैं आपको एक मैप बताता हूँ। If you see this map of the early medieval time, when Gupta Empire declined, what happened here? There are many such regions which were divided into, like the Palas were ruling in Bihar, Bengal and Orissa wala region pe. The Pal dynasty was ruling here in these areas. Kalachuri was ruling here. Chalukyas were famous from here, these regions. So Chalukya was very much prominent in the early medieval time. Then we have Pandyas, Cholas in the north. Gujara Pratihar region was ruling in the Rajasthan and the Gujarat region. Then we have Sindh and then we have Rajput regions here. Okay. And then in the northwest India, there was an empire called Ghaznavid Empire. So we are in the 8th 9th century AD, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि Ghaznavid Empire was very much prominent at the frontier of Indian border. इंडिया के बॉर्डर के वेस्टर्न टाइप में गजनविद एम्पायर पावरफुल हो रहे थे और सेम टाइम पे वर्ल्ड लेवल पे 2 चीज हो रही थी इन द सेम पीरियड। सो देयर वर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स वर हैपनिंग इन द ग्लोबल पर्सपेक्टिव इन दिस टाइम वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट। कौन बताएगा क्या हुआ था अर्ली मिडिवल वर्ल्ड में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ था अर्ली मिडिवल वर्ल्ड? मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, है ना। क्या हुआ था? डिक्लाइन। रोमन एम्पायर वाज वेरी वास्ट एम्पायर, है ना। आपने जानते हैं कि पूरा यूरोप में उनका कब्जा था। द रोमन ग्रीको रोमन एम्पायर, वी कॉल देम एज अ ग्रीको रोमन एम्पायर, जिनका रूल कहाँ पे था? द होल यूरोप। एक समय था जहाँ पे होल यूरोप पे इनका रूल था। तो दे डिक्लाइन इन द टाइम ऑफ 9th सेंचुरी एडी। हाँ, इससे पहले थोड़ा 2 सेंचुरी पहले जाओ, क्या हुआ था? द मुस्लिम एम्पायर। मुस्लिम का फ्लरिश कब से देखने को मिलता है हमें? एम्पायर कब से आता है? 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी से स्टार्ट होता है। और 7th सेंचुरी में क्या हुआ था? इफ वी नॉट गो इनटू द रिलीजियस स्फीयर, हम हिस्टोरिकली बेसिस पे जाते हैं, द इस्लाम वाज फाउंडेड। जैसे बुद्धिज्म वाज फाउंडेड इन इंडिया इन 6th century BC, in the same manner the Islam was founded in 7th century AD. तो इस्लाम जब फाउंडेशन हुआ 7th century AD में, पैगम्बर मोहम्मद, कब डेथ हुआ था उनका? 632, है ना। तो 630 के बाद उनको ज्ञान मिला था, जैसे बुद्धा को ज्ञान मिला तो ही गॉड, है ना। तो 632 में जब वो उनका डेथ होता है तो इट वॉज लिमिटेड टू ए स्मॉल लीडर। जो जैसे बुद्धा क्या थे? ही वॉज ए रिलीजियस गुरु। इन द सेम मैनर द पैगम्बर वाज आल्सो रिलीजियस गुरु, ही वॉज नॉट अ पॉलिटिकल गुरु ना। उनके जो वंशज थे, उनके नाम पे बाद में चल के ना स्टेट बना, एम्पायर बना, ये सब चीजें बनी, ठीक है। तो द पॉइंट है, आप देखेंगे धीरे धीरे करके फ्लरिश होना शुरू होता है। एट वन टाइम द ग्रीको रोमन एम्पायर वॉज डिक्लाइनिंग इन द यूरोप, ऑन द अदर हैंड द इस्लामिक एम्पायर वॉज फ्लरिशिंग फ्रॉम अरब, टर्कीज, जो तुर्क है, ईरान है, सेंट्रल एशिया का जो रीजन है, जो कैस्पियन सी वाले आसपास वाले जितने भी रीजन है, वहाँ पे क्या होना शुरू हुआ? द इस्लाम वाज फ्लरिशिंग एंड दे वर कमिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली टू ईस्टवर्ड आल्सो।
ईस्ट में आना शुरू किए। जैसे ईस्ट में आए, कब आए? इन इंडिया वी हैव एविडेंस नाउ, हु इज द फर्स्ट पर्सन हु केम टुवर्ड्स इंडियन बॉर्डर? Muhammad bin Qasim. He came in 712 AD. He was one of the first instance, है ना। तो शुरू मतलब 712 में एक मुस्लिम जो इस्लामिक स्टेट है, एक लीडर है, वो आ गए, वो भी गलती से आए थे, है ना। इट वाज नॉट वेल प्लान, है ना। अगर इंडिया में उनको सामान नहीं लूटा जाता इंडियन बॉर्डर पे सिंध में, तो ही कुडंट प्लान हियर, आते नहीं। So we see in the early medieval period that something changing in the world. One was the rise of religion, Islam, and then this led to the formation of Islamic state in different parts of Asia. पहला चीज हो रहा था। The second point was in the world level, Greco-Roman Empire was declining. दो चीजें same time पे हो रही थी। And India, what was happening? Indians were divided into many parts. There was no unity in India. If we go to the Gupta Empire, Gupta was powerful empire. If you see the map of Gupta, this was a map of Gupta for many times. Even वर्षों तक this was a map of Gupta for some times, है ना। So Gupta was very much powerful in India. But in the 7th, 8th, 9th century, 10th century AD, at a time when the Islamic state was emerging in Asia, in India, the Indians were divided in many parts. हम कल वाले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कि इंडिया में गजनविद इन्वेजन कैसे हुआ, किस तरह से स्टार्ट हुआ। We will start from tomorrow onwards, ठीक है। बट अगर आप इसमें देखते हैं इस मैप में, तो व्हाट विल यू फाइंड दैट वी वर डिवाइडेड एंड वन टाइम दे वर आल्सो अटैकिंग। तो हम शॉर्ट एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि गजनविद स्टेट था, गजनविद वाज अ स्टेट फ्रॉम वेयर द मोहम्मद गजनी, ही इज पॉपुलरली नोन एज मोहम्मद गजनी। तो व्हेन ही केम इन इंडिया, ही प्लंडर्ड हाउ मेनी टाइम्स? और उनका टाइम पीरियड क्या था? 1000 AD के आसपास था। एंड ही केम एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल ने उसने लूटा क्या था? सोमनाथ टेम्पल वाज वन सच इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट टेम्पल, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि सोमनाथ टेम्पल, उसके बाद दूसरे प्रोमिनेंट इन्वेडर था, उसका नाम था मोहम्मद गौरी। तो जो गौरी है, गजनविद एम्पायर हटने के बाद उनका एम्पायर आया गौरी का 100 वर्ष बाद। तो जब वो इन्वेड किया इंडिया पे, ही केम्स मेनी टाइम्स एंड देन एट वन टाइम ही वाज आल्सो डिफीटेड। इफ यू गो फ्रॉम द राजपूताना रीजन, राजस्थान वाले रीजन से, पृथ्वीराज चौहान वाज देयर and Delhi was not a prominent city at that time. In ancient time, during the Mahabharata, Delhi called Indraprasth was an ancient city, but in 12th century AD, when Gauri was coming here, Delhi was not a prominent city, but it was a part of Prithviraj Chauhan Empire. Prithviraj Chauhan made an alliance and he with the help of other Rajput kings, defeated Muhammad Gauri at one time in the Battle of Taran. But in the other battle, पृथ्वीराज चौहान was himself defeated by Gauri, और फिर वहाँ पे ऐबक को लाए यहाँ पे इंडिया में, he was a slave, and then after the death of Gauri, ऐबक founded a different empire in India, and this was the first Muslim empire which was founded at all India basis पे, है ना। But दिल्ली सल्तनत जब फाउंड हुआ, तो it was not as big as it was in the खिलजी टाइम। ऐबक कहाँ से स्टार्ट किया था रूल करना? लाहौर से, and then Delhi, and when he died after how many years? कौन बताएगा? दिल्ली सल्तनत वाज फाउंडेड इन 1206 एंड ही डाइड इन 1210। उन्होंने कुतुब मीनार भी बनाना शुरू किया, दैट वाज नॉट कंप्लीटेड, व्हिच वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, है ना। एंड देन इल्तुतमिश केम एंड ही एक्सटेंडेड द एम्पायर ऑफ दिल्ली। इल्तुतमिश का एम्पायर कितना तक था बताओ? कहाँ तक लिमिट रहा होगा? नॉर्थ इंडिया पूरा था उनका एम्पायर, मतलब हिज एम्पायर वाज लिमिटेड टू North India, the whole North India. So now, after let's say after 500 or 600 years after the decline of Gupta, 600 वर्ष के आसपास, मतलब 600 वर्ष बाद पहली बार फिर से नॉर्थ इंडिया यूनाइट हुआ था। Here the Indians were not, the North India was not united, and if you see the map of Gupta, इसमें दिल्ली सल्तनत का मैप देखेंगे, this whole North India and Eastern India, Bihar, Bengal and all, so this was a part of Iltutmish Empire. When he died in the year called 1236, this whole North India was under the control of Delhi Sultanate. And then further development किसने किया दिल्ली में? The further development was done by Alauddin Khilji. बलबन ने क्या consolidation नहीं किया? Balban did not extend, but he focused on the consolidation of the empire. So Balban was an important bridge on which अलाउद्दीन खिलजी एक्सटेंडेड दिल्ली सल्तनत, है ना। उन्होंने बहुत सारा रूल्स रेगुलेशंस लाए, है ना, हम पढ़ेंगे डिटेल में उन सब के बारे में। बट द पॉइंट है, दिस होल रीजन्स
for at some time but merged with Delhi Sultanate by Alauddin Khilji. अलाउद्दीन खिलजी, आप उनके बारे में जानते हैं, पढ़े हैं कितना रिफॉर्म सिस्टम था, पर क्या हुआ फिर इन इंडिया? व्हाट हैपेंड व्हेन अलाउद्दीन खिलजी डाइड? स्लोली क्या हुआ? ग्रेजुअली द एम्पायर डिक्लाइन एंड देन गियासुद्दीन तुगलक केम, मोहम्मदीन तुगलक केम, और देयर वर मेनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स ऑफ मोहम्मदीन तुगलक एंड देन व्हाट हैपेंड? द एम्पायर इज अगेन स्टार्टेड टू बी डिक्लाइनिंग. आप देखेंगे मोहम्मदीन तुगलक के टाइम पे क्या हो रहा था. उनका रूल का टाइम क्या है मोहम्मदीन तुगलक का? कब एंड हुआ? हु बिकेम किंग ऑफ दिल्ली आफ्टर मोहम्मदीन तुगलक? फिरोज शाह तुगलक. तो मिड 14th सेंचुरी, मतलब 1350 आते आते हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत बहुत छोटा हो गया था. ये जो मैप है, दिस होल मैप ऑफ दिल्ली वाज अराउंड 1300 व्हेन अलाउद्दीन खिलजी वाज रूलिंग. और अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? डर भी था ना, मंगोल इन्वेजन का डर था उनका, तिमरुद इन्वेजन का डर था. सो द पॉइंट ये है, these regions again become independent in and after 1336. So what happened in 1336? Vijayanagar Empire was founded in India. देखा आपने, सुना है ना? कौन फाउंड किया था? वो तो बहुत बड़े लीडर थे विजयनगर, हरियर एंड बुक्का. हरियर एंड बुक्का दे फाउंडेड. तो एक कब फाउंड हो रहा है? जब मोहम्मद बिन तुगलक वाज रूलिंग इंडिया. जब दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहे थे, तब विजयनगर एम्पायर फाउंड हुआ. क्यों? बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू हैंडल दिस प्रॉपरली. आप जो कैपिटल सिटी याद है, दौलताबाद, when he tried to shift the capital from Delhi to that region, that was an unsuccessful attempt. Karachi's unsuccessful attempt था, Karachi expedition was unsuccessful for him. तो उसमें पॉइंट ये है कि इस समय आता है हम देखते हैं द एम्पायर विच वॉज कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडर्ड बाय खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, was again declining during the time of मोहम्मद बिन तुगलक. और नॉर्थ साउथ इंडिया में 2 एम्पायर बनता है सेम टाइम पे. कौन सा? वन वाज विजयनगर, तो दिस होल इंडिया. अच्छा, अपने हम चेराज, पांड्या, चोलाज को जानते हैं. सो इन द अर्ली मिडिवल टाइम, अर्ली मिडिवल टाइम मतलब समझ रहे हैं ना क्या टाइम पीरियड है? गुप्ता के डिक्लाइन होने के बाद थोड़ा सा, और दिल्ली सल्तनत के फाउंडेशन से पहले, मतलब 750 से 1200, है ना. 750 to 1200 पीरियड इज अर्ली मिडिवल टाइम ऑफ इंडियन हिस्ट्री. तो इस अर्ली मिडिवल टाइम पे द चोलाज वर वेरी मच प्रोमिनेंट. अपने एक मूवी आया था पोलियन सेल्वन, आपने देखा है मूवी? PS1 PS2 कौन देखा है? मूवी देखो. ओके, ऑलराइट. सो यू रिमेंबर ना कि हाउ मच चोला एम्पायर वाज पावरफुल. दे हैड कॉलोनीज इन श्रीलंका पे, तो कब्जा था उनका. साउथ ईस्ट एशिया और मालदीव पे इनकी कॉलोनीज थी. मतलब दे वर सो पावरफुल इन, सो दे वर पावरफुल इन विच टाइम? इन द अर्ली मिडिवल पीरियड, मतलब 9th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, 11th सेंचुरी AD की बात है. दे वर पावरफुल, बट in the 14th century AD, when the Delhi Sultanate was powerful, these people declined. So large Pandyajan Chera decline हुआ, and विजयनगर, जब विजयनगर फाउंडेशन हुआ, तो विजयनगर had a control of all these regions. मतलब चोला, पांड्यजन, चेरा were not powerful in that time when Vijayanagar Empire was ruling South India. So Delhi Sultanate was disintegrated, and then कौन सा किंगडम था यहाँ पे? The Bahmani kingdom was there in the middle, जो डेक्कन वाला जो एरिया है, महाराष्ट्र, हैदराबाद एंड ऑल दीज रीजन्स, किसका कंट्रोल था? There were अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार. So in all these regions, Bahmani kingdom was ruling. So then in the 14th-15th century, India was divided into many parts, and when you go to the बाबर के टाइम, जब बाबर इंडिया में आया, again he consolidated empire, and during the time of औरंगजेब इंडिया फिर सबसे बड़ा हो गया. बट द सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है द फ्यूडलिज्म. जिस बिग कॉमन पॉइंट है जो वर्ल्ड लेवल पे जो हो रहा था. वी सी दैट इन द 9th सेंचुरी, 8th सेंचुरी वर्ल्ड में 2 चीज हुआ हमने देखा. वन वाज डिक्लाइन ऑफ ग्रीको रोमन एम्पायर, एंड अदर वाज राइज ऑफ इस्लाम. इस्लाम वाज कमिंग टुवर्ड्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन 9th-10th सेंचुरी AD, एंड दे वर सक्सेसफुल इन द 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी में सक्सेसफुल हो गया. इंडिया में आया और इंडिया में भी एम्पायर उन्होंने बना दिया. ठीक है.
वर्ल्ड लेवल पे जो ग्रीको रोमन एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ तो दो चीज हुआ, कल हमने बात किया था हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर में, आई विल टेल यू इन सम डिटेल नाउ आल्सो, कि वर्ल्ड में क्या हुआ, ग्रीको रोमन एम्पायर हुआ तो एक इंपॉर्टेंट चीज वहां भी हुआ और यहाँ भी हुआ, है ना, एंड द हिस्टोरियंस हैव बीन डिबेटिंग दिस टॉपिक, देयर इज अ ह्यूज डिबेट अमंग हिस्टोरियंस ऑन दिस टॉपिक, वो हम अभी थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा डिबेटेबल टॉपिक क्या है कि इंडिया में फ्यूडलिज्म था या नहीं था, है ना, जब हम अर्ली मिडिवल पीरियड की बात करते हैं, ठीक है। सो वेदर इंडिया हैड फ्यूडलिज्म और इंडिया हैज नो फ्यूडलिज्म। आप सबने टॉपिक पढ़ा है, सुना है या पढ़ा है? पढ़ा है टॉपिक फ्यूडलिज्म, क्या होता है फ्यूडलिज्म? हाँ, तो फ्यूडलिज्म में क्या होता है, क्या होता होगा फ्यूडलिज्म? जैसे मान लो अभी हमारा डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, तो इन द अर्ली मिडिवल टाइम लेट्स डिबेट दिस दैट इंडिया में हैव अ फ्यूडल सोसाइटी, क्या होता होगा उस समय? इम्पैक्ट होता है जमींदार का, हाँ ठीक है, हाँ वेसल्स, जिसे यूरोप में वेसल्स बोलते थे, है ना, तो सब पार्ट्स हो गए। राजा क्या पावरफुल होता था? हाँ, तो द किंग वर नॉट पावरफुल इन द फ्यूडल सोसाइटी, किंग विल नॉट पावरफुल। पावरफुल कौन रहेगा? फ्यूडल लॉर्ड्स विल बी लैंड लॉर्ड्स, जिसे फ्यूडल लॉर्ड्स बोलते हैं। तो लैंड लॉर्ड्स और फ्यूडल लॉर्ड्स में क्या अंतर हो सकता है? व्हाट मे बी द डिफरेंस बिटवीन दीस टू वर्ड? लैंड लॉर्ड विल बी द ओनर ऑफ द लैंड एंड द फ्यूडल लॉर्ड्स, हाँ क्योंकि किंग वाज पावरफुल देयर, द फ्यूडल लॉर्ड्स वर नॉट पावरफुल, द किंग कैन ट्रांसफर हिम एंड दीज फ्यूडल लॉर्ड्स वर द मनसबदार्स, they were given jagirs, so they can be transferred, their land can be confiscated by a state, the state was powerful। अगर यहाँ पे स्टेट पावरफुल नहीं होता तो फ्यूडलिज्म आ जाता वहाँ पे। द सेम थिंग हैपेंड इन द 18th सेंचुरी इंडिया, व्हेन औरंगजेब डाइड, जमींदारों रिवॉल्ट, ठीक है, एंड लेट्स से सबसे बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स का नाम ले लो, जो मंत्री थे इनके मुगल्स के, मान सिंह तो अकबर के टाइम में, औरंगजेब के टाइम पे बोल रहा हूँ, जो डिक्लाइन हुआ, हाँ आप बोलिए। मुर्शी अली खान हु फाउंडेड बंगाल, सो ही वाज अ ऑफिसर ऑफ मुगल एम्पायर। उसके बाद आप एग्जांपल लीजिए हैदराबाद, निजामुल मुल्क असफ जा, ही फाउंडेड अ न्यू एम्पायर इन साउथ इंडिया कॉल्ड हैदराबाद एम्पायर। सादत खान हु फाउंडेड अवध। सो द पॉइंट है, व्हेन द स्टेट इज नॉट पावरफुल द ऑफिसर्स विल बी पावरफुल। ऑफिसर क्या करेगा? स्टेट को पावरफुल रहने ही नहीं देगा, he will try to make his own state। अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको मिनिस्ट्री बनाया जाए, कोई मिनिस्ट्री दे दिया और किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर बनाना हो, तो आप क्या प्रीफर करेंगे? बिकॉज यू हैव ऑल द पावर इन द स्टेट, स्टेट में फ्लोर आपका बढ़ेगा, एंड सेंटर में क्या है? द प्राइम मिनिस्टर विल बी द सेंट्रल पावर ना, एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो पावरफुल नहीं होगा। तो हमेशा लोग प्रीफर क्या करते हैं? टू रिमेन अ किंग इन देयर एरिया इंस्टेड ऑफ बीइंग अ स्लेव ऑफ अनदर पीपल, ठीक है। तो इस समय क्या हुआ, हम इंडिया में फिर इसी टाइम पे आ रहे हैं, अर्ली मिडिवल टाइम पे, जो हमारा टॉपिक अभी है कि स्लेव सिस्टम क्या है। तो फ्यूडल लॉर्ड समझ गए, फ्यूडल लॉर्ड और लैंड लॉर्ड में क्या अंतर है? लैंड लॉर्ड विल बी द ओनर ऑफ द लैंड एंड फ्यूडल लॉर्ड्स आर द ओनर ऑफ द एवरीथिंग हैपन इन दैट लैंड। जैसे कि लैंड में और क्या चीज़ होता है? लैंड में सिर्फ लैंड ही तो नहीं होता है, लैंड में क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर में और क्या होता है? वी हैव क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर, खेती होती है, और peasants are there, agricultural laborers are also there ना। तो एग्रीकल्चरल लेबर पे भी उसका अधिकार होगा, फोर्स लेबर होगा, इट विल नॉट बी अ फ्री पीजेंट सोसाइटी। अभी इंडिया में क्या है? पीजेंट्स आर फ्री, है ना, इन मोर सेंस, ज़्यादा डिबेट पे नहीं जाते हैं। तो इन दैट टाइम द पीजेंट्स वर नॉट फ्री। तो इसमें दो डिबेटेबल टॉपिक है, वेदर इंडिया हैड फ्यूडल सिस्टम और नॉट। उससे पहले हम वर्ल्ड लेवल पे फ्यूडल सिस्टम समझते सेम टाइम पे। तो आपने क्या देखा, वर्ल्ड लेवल पे जो मेजर चेंज हुआ इस टाइम पे, वो ये हुआ द डिक्लाइन ऑफ ग्रीको रोमन एम्पायर, एंड इन विच ईयर, इन विच सेंचुरी? 9th सेंचुरी, है ना। तो मेजरली 9th सेंचुरी आता है, फाइनली ग्रीको रोमन एम्पायर डिक्लाइन होता है। तो डू यू नो व्हाट हैपेंड इन द 9th सेंचुरी व्हेन ग्रीको रोमन एम्पायर डिक्लाइन? द फ्यूडल लॉर्ड्स बिकम डोमिनेंट,
अब डोमिनेंट कैसे बना फ्यूडल लॉर्ड्स पता है? एनी आइडिया? Because one central power who was ruling the almost entire Europe was declined, और जो उस समय का जो स्टेट था, स्टेट was there. The state were dependent on the feudal lords who were maintaining land also, agricultural activity also, and they had armies also. Feudal lords के पास. So these armies were powerful. So these feudal lords were supporting one and one state. मैं एक example देकर समझाता हूँ आपको. Let's say this is a state. There are 3 states in Europe. 3 states हैं, and let's say there are 100 feudal lords. So there are 3 states. मतलब there are three kings in the area. पूरे एरिया में 3 राज्य है और 3 राजा है, ठीक है, और 100 feudal lords. Let's say इसके पास 70 feudal lords है. This king A has 70 feudal lords. Suppose it has to fight with king C. So these feudal lords will be supporting king A. Then only he will win the battle. इसमें क्या है? King A is very powerful because he is maintaining 70 feudal lords and others have very less. Do you know what happened in the 9th century जब decline हुआ feudalism Greco-Roman Empire का? These feudal lords were playing games. Game खेल रहे थे किसके साथ? राजा के साथ. Now there will be fight between A and C. The most of these people will support C. तो अब इसमें क्या होगा? The A will be defeated. But A was very powerful क्योंकि A के पास कितना है? 70 feudal lords है. But these feudal lords are supporting whom? Enemy. दुश्मन को support कर रहा है. Now the enemy will win over the area. And now who will be powerful? C or feudal lords? Why? Because they are the kingmaker, ना? So these feudal lords will become powerful instead of king C. तो जब feudal lords powerful होगा क्या होगा? वो अपना चलाएंगे. अब क्या हुआ? यूरोप में इस समय 500 total feudal lords. There were more than 500 feudal lords. The whole Europe was divided into more than 500 feudal lords. तो जो feudal society था यूरोप में उसमें कई सारे फीचर्स थे. एक तो स्टेट पावरफुल नहीं था, पहला फीचर है. स्टेट इज नॉट पावरफुल. अदर फीचर इज feudal lords are most powerful. ठीक है. दूसरी फीचर थी इसमें कि दिस वाज एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी. मतलब लोग गांव में ही रहते थे, गांव से उनका लेना देना था. ट्रेड वाज नॉट देयर. द पीपल इज टू कल्टिवेट ओनली दोज आइटम्स विच वर नेसेसरी फॉर देयर विलेज. ए पॉइंट है, ठीक है. दूसरा पॉइंट था मनी वाज नॉट देयर. इफ देयर विल विलेज बेस्ड इकोनॉमी, व्हाई मनी इज रिक्वायर्ड? मनी कब जरूरत पड़ता है हमें? जब हम ट्रेड करते हैं, जब बाहर से सामान लेते हैं. So there was an absence of money system in this feudal society. Anything happening? So are you getting the point? Then what was happening? The feudalism was arising in early medieval world, है ना? अब पॉइंट है इस समय सेम टाइम पीरियड में क्या हुआ? यूरोप में feudalism आया. और अगर आप feudal systems पे जाते हैं, you will go to these feudal systems, you will find many such points. Okay. In Europe, do you know what was happening? When these systems declined, all right, what was happening? The king was at the top level, but in the beginning, especially the big landlords become very much powerful. Big landlords, है ना? And especially these people were the lords who were maintaining everything. और loyalty जो है maintain सबसे important चीज था. तो we are in the which century in the world? We are in the 9th century when Greco-Roman Empire declined. 10th century, 11th century, 12th century, 13th century. So this period of 9th century to 14th century, ये जो पीरियड है, दिस वाज अ पीरियड ऑफ फ्यूडलिज्म इन यूरोप. आपने देखा फ्यूडलिज्म क्यों आया था? जब पावरफुल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, फ्यूडलिज्म आया. फिर फ्यूडलिज्म चला भी गया. क्यों गया? देयर वर मेनी रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म. आपने जैनिज्म बुद्धिज्म हमने समझा था अभी ना, और आपने पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है इस टॉपिक को. जैनिज्म को राइज होने में कौन से क्लास इंपॉर्टेंट रोल निभाया था? ट्रेडर, मतलब वैश्याज. वैश्याज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द राइज ऑफ न्यू रिलीजन इन 6th century BC. सेम तरह का रोल यहाँ पे आता है. इन दिस टाइम व्हाट वाज हैपनिंग? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हैपेंड इन 13th-14th century.
In Europe, what happened? Agricultural development happened. The agricultural development will lead to rise of trading activity. ट्रेड से क्या होगा? अर्बन सेंटर्स आएंगे. फ्यूडल लॉर्ड्स का बेस क्या था पता है? विलेज. They used to live in the village. Now the traders will be living in the urban centers. Now the traders will be powerful because they have international contacts है उनका, money है उनके पास. Feudal lords had no money. Feudals have land. अभी आप गांव में जाएंगे ना, you will find a family जिनके पास 100 एकड़ जमीन होता है पर पैसे नहीं होता है. आपने देखा फैमिली ऐसे कोई होता है? बिकॉज यू हैव नो मूवेबल मनी जो आप कुछ खरीद सकते, आईफोन, लैपटॉप वगैरह ले सकते. आपके पास लैंड है पर लैंड से काम नहीं हो पा रहा है, सही से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है. तो फ्यूडल लॉर्ड्स हैड लैंड बट दे हैड नो मनी. मनी किसके पास था? अभी ट्रेडर्स के पास. एंड दीज ट्रेडर्स वर नोन एज बुर्जुआ. बुर्जुआ को दूसरे शब्द में मिडिल क्लास बोलते हैं. ठीक है, तो जो बुर्जुआ थे, देयर वाज द राइज ऑफ बुर्जुआ क्लास इन विच सेंचुरी? इन द 14th सेंचुरी. तो जब बुर्जुआ क्लास यूरोप में आया, बुर्जुआ क्लास का मेन काम क्या था? ट्रेडिंग करना. तो दे हैव अ लॉट ऑफ मनी. बहुत सारे पैसे थे इनके पास. तब 6th सेंचुरी बीसी में क्या था? द वैश्याज हैज लॉट ऑफ मनी. तो व्हाई विल दे एक्सेप्ट ब्राह्मण एंड क्षत्रिय? तो देवर इन सर्च ऑफ न्यू रिलीजन. जैसे बुद्धा महावीर आए तो उन्होंने उनको फंड किया और नया रिलीजन आया. मॉडर्न एम्पायर जो इतना पावरफुल एम्पायर था, किसको फॉलो कर रहे थे? बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे. मतलब हिंदुइज्म वाज नॉट सो मच प्रोमिनेंट इन द मौर्यस टाइम इन इंडिया. मान सकते हैं इस बात को हम. और द पॉइंट ये है, हियर दीज पीपल सपोर्टेड समवन. दीज पीपल मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? बुर्जुआ, ट्रेडिंग क्लास, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ. सोचो, आप बताओ कोई पीछे से किसको सपोर्ट करेगा? ये जो बुर्जुआ किसको सपोर्ट करेगा? सेम जो वैश्यास की तरह है. तो दे सपोर्टेड न्यू रिलीजन, बुद्धा और महावीर. अभी ये लोग किसको सपोर्ट करेंगे? हाँ, मुस्लिम यूरोप में नहीं था उस समय. दे विल सपोर्ट द किंग. स्टेट वाज देयर बट द किंग वर नॉट पावरफुल. नाउ दीज पीपल फंडेड द किंग. तो इनके पास बहुत सारे पैसे था एंड दे वांटेड टू कम आउट ऑफ दिस फ्यूडल सिस्टम. तो दे सपोर्टेड अ किंग. किंग क्या करेगा? आप दे विल मेंटेन स्टैंडिंग आर्मी, मतलब परमानेंट आर्मी बनाएंगे. जब आपके पास पैसे होंगे क्या करेंगे? आप राजा है, राजा के पास सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है? आर्मी होती है. पर इनके पास तो आर्मी नहीं था. 9th, 10th, 11th, 13th सेंचुरी में क्या था इनके पास? आर्मी नहीं था. दैट इज व्हाई फ्यूडल लॉर्ड्स वर पावरफुल. नाउ द किंग्स विल मेंटेन आर्मी. अबे आर्मी किंग्स मेंटेन कर ले तो क्या होगा फिर? They will be powerful and they will destroy the feudal lords. Why? Because the feudal lords are living their own society as per their own rule. पीजेंट का शोषण हो रहा था, है ना? पीजेंट कंप्लेन करे ना उनको. तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे लोग शुरू कर दिए. तो आप समझ रहे हैं फ्यूडलिज्म कैसे डिक्लाइन हुआ? एक रीजन क्या है? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ, जिससे ट्रेड बढ़ा, इससे नया क्लास आया. कौन, क्या नाम था? बुर्जुआ. Middleman, middle class, bourgeois class people funded state, king, and king maintained a standing army, and now the army can defeat the feudal lords, destroy the feudal lords. एक तो एक रीजन है. हिस्ट्री में बहुत सारे मेन कॉजेज है, उतना हम डिटेल पे नहीं जाते हैं, पर यूपीएससी में मतलब हमें समझने के लिए, है ना, मेन पॉइंट है. तो आप समझ रहे फ्यूडलिज्म डिक्लाइन हो गया यहाँ पे. ठीक है. दूसरा रीजन क्या था पता है? जो लोग शहर में जा रहे थे. तो जैसे मान लो आप लोग कोई उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से गांव से आए हो, है ना. एक आदमी उस गांव से शहर में आता है जॉब करने, उसे 15,000 रुपये सैलरी मिलती है. तो क्या करता है वो अपने दोस्त को बोलता है ना, आई एम गेटिंग 15,000 हियर, यू आल्सो कम. तो अपने दोस्त को शहर नहीं लाता है. तो उस समय जो लोग शहर जा रहे थे, दे वर अट्रैक्टिंग द रूरल पीपल. गांव में क्या कर रहे थे? जैसे कि एक फैमिली का एक आदमी भाग के शहर चला गया, ही फ्लेड एंड वेंट टू शहर सिटी, and then there he earned money. तो एक सिस्टम था उस समय, you can buy your freedom. The forced peasant labor, जो feudal lord के जो लैंड था उसमें जो काम कर रहे थे, these peasants can buy their freedom. और बाई करने के लिए क्या चाहिए? हमें पैसे चाहिए. उनके फैमिली में एक आदमी शहर में रह रहा है, जो पैसा जिसके पास है. Now this person can buy a freedom of his family member, of his friend. तो इसमें बाई करना आसान हो गया.
तो लोगों ने अपना अपना फ्रीडम खरीद के शहर की तरफ मूव किए और यहाँ पे डिक्लाइन हो गया। एक तो स्टेट पावरफुल हो गया, दूसरा किसान वहाँ नहीं रहना चाहते थे, प्लेग आ गया था उस समय। अब ब्लैक डेथ का नाम सुनेंगे, कब आया था इस समय ना, 14 सेंचुरी में ब्लैक डेथ आया था, जिसमें तकरीबन 25% लोग यूरोप में मारे गए थे, है ना। सेम टाइम 14th सेंचुरी की बात है ना, मिड 14th सेंचुरी में ब्लैक डेथ जब आया। तो दीज थिंग्स वर चेंजिंग द सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड एट दैट टाइम। और एक तरह से नए सोसाइटी आई, और सबसे बड़ा जो स्टेट जो बना उस समय कौन कौन था, जैसे मैग्ना कार्टा का नाम सुना होगा आपने, 14th सेंचुरी में इंग्लैंड में आया। उन्होंने राइट्स दिया लोगों के प्रति, दैट द पीपल विल बी गिवन राइट्स, सर्टेन राइट्स। तो उससे लोग सोच रहे थे। फ्रांस बिकेम द मोस्ट पावरफुल स्टेट। फ्रांस वाज वन ऑफ द मोस्ट एब्सोल्यूट पावरफुल स्टेट इन द 15th-16th सेंचुरी। आप देखेंगे वहाँ का जो राजा था लुई 16 की नहीं बात कर रहे हैं, जिसके सामने क्रांति हुई थी। लुई 14 वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। तो लुई 14 सबसे पावरफुल, स्पेन पावरफुल बन गया। इसी समय क्या चीज हुआ था, कॉलोनिज्म आना शुरू हो गया था, एक्सपेंशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, डिस्कवरी हुई थी ना, नए नए रास्ता ढूंढे जा रहे थे। द कोलंबस वेंट टू अमेरिका, न्यू वर्ल्ड आया, है ना, मेक्सिको आया। और जो कॉलोनिज्म जो आया था, जो नए जो वाइजेस आ रहे थे, जो नए नए रूट्स आए थे, उसके 3 मेन रीजन था। ट्रिपल जी का आप लोगों नाम सुना है, गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। जो नए नए जो डिस्कवरी हो रहे थे, दिस वाज सब गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। मतलब गोल्ड मतलब दे वर गोइंग फॉर मनी पर्पस, पैसे के लिए जा रहे थे। दूसरा था स्पेन अपना एम्पायर भेज रहा है, वाइजेस भेज रहा है, क्यों, ग्लोरी के लिए, उसका फेमस होगा, ही विल हैव कॉलोनीज। एंड देन थर्ड वाज द राइज ऑफ स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो सारे कॉलोनी में अपना अपना धन पहुंचाना चाह रहे थे। तो दिस वाज द वर्ल्ड सिनेरियो ऑफ द मिडिवल टाइम्स। मिडिवल टाइम्स में ऐसे वर्ल्ड बन रहा था, ठीक है। इंडिया में जो फ्यूडलिज्म हो रहा था, सेम टाइम पे हिस्टोरियंस इन द कंटेम्पोरेरी। अच्छा, आप जानते हैं, जो हिस्ट्री अभी पढ़ रहे हैं, वो हिस्ट्री रिसेंटली लिखा गया है 100 वर्ष पहले। उससे पहले ऐसा हिस्ट्री नहीं था। डू यू नो इट? जैसे आप मान लो मौर्य के बारे में आप जानते हैं, मौर्यन एम्पायर जानते हैं ना, कब आया था मौर्यन एम्पायर? हाँ, अरे तो हिस्ट्री तो पढ़े होंगे ना, कौन पढ़ाया बताओ? 3rd सेंचुरी BC, है ना। तो मौर्यन एम्पायर जो आप समझो, ठीक है, जो मौर्यन एम्पायर जो बना, उसका हिस्ट्री में पहले से उतना नहीं पता था। मतलब अकबर को अशोक के बारे में उतना डिटेल नहीं पता हो जितना हमें पता है। पता है क्यों? हाँ, उस समय इंस्क्रिप्शन वगैरह डिस्कवरी नहीं हुआ था। डिस्कवरी हुआ भी था तो जो उनकी जो लिपि थी, ब्राह्मी लिपि, दैट वाज नॉट डिसिफर्ड। ब्राह्मी लिपि पढ़ी नहीं जा सकती थी। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि कब पढ़ी गई? जेम्स प्रिंसेस 1837। तो बिफोर 1837 वी कांट रीड द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। जितने भी जो रॉक एडिक्ट है, पिलर है, हम नहीं पढ़ सकते थे। आप अर्थशास्त्र का नाम जानते हैं? कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है, डोंट वरी, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, ठीक है। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य, और विष्णुगुप्त भी नाम है। So this अर्थशास्त्र बुक was not available in the 19th century India. ये 20th सेंचुरी की डिस्कवरी है। अर्थशास्त्र अशोक के टाइम पे जो बना था, जो कौटिल्य ने जो लिखा था, there were divided into numerous articles which were combined by historian, और ये 1900 के बाद हमारे सामने आया है। तो मतलब हम जो हिस्ट्री अभी कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो जब ये हिस्ट्री लिखी जा रही थी, हिस्ट्री कई तरह से लिखी जाती है, ठीक है। जैसे आप मान लो उत्तर प्रदेश से हो, तो विल यू, इफ यू राइट द हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश ऑफ कंटेम्पोरेरी टाइम, विल यू क्रिटिसाइज उत्तर प्रदेश? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज़ यू विल बी बायस एंड टू अदर रीजन। तो जब हिस्ट्री लिखी जाती थी 1960 के दौरान, जो मेन हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में कौन हिस्ट्री पढ़ते हैं आप, किसका बुक पढ़ते हैं? आर.एस. शर्मा। कब लिखते थे? 1960, 1970, 1980। और ये जो बुक जो पढ़ते हैं छोटी वाली, क्या नाम है बुक की? इंडियाज एंशिएंट पास्ट, आर.एस. शर्मा का, कब लिखी गई? इट वाज एनसीईआरटी बिफोर इट। सो ये सब जो हिस्ट्री है 1960-70 में लिखी है। सो नाउ द हिस्टोरियंस ने डिबेट करना शुरू कर दिया कि यूरोप में क्या था? फ्यूडलिज्म था। तो क्या इंडिया में भी फ्यूडलिज्म था या नहीं था, है ना? उस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है। आप बताओ, जो हमारा सवाल था, इंडिया में फ्यूडलिज्म था? एक लोगों ने बोला फ्यूडलिज्म था, उसका नाम था आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा रोट अ बुक। आर.एस. शर्मा इज अ वेरी फेमस हिस्टोरियन, है ना। He said in India there was a feudalism. तो
आप लोग बोलो, फ्यूडलिज्म था? हमने बोला ना यूरोप में ऐसा ऐसा फ्यूडलिज्म था, पैसा नहीं था, मार्केट नहीं था, विलेज बेस्ड इकोनॉमी था, किंग नहीं थे वहां पे, है ना? क्या था? फ्यूडल लॉर्ड्स था। तो हम सिनेरियो देख लिया वर्ल्ड लेवल पे देयर इज अ फ्यूडलिज्म। तो कैन वी से दैट इंडिया हैज हैड फ्यूडलिज्म? और एक कुछ एग्जांपल समझते हैं, फिर आप बताना इसका आंसर, ठीक है? इज इट विजिबल टू यू? ऑलराइट, सो हम क्या देखते हैं एंशिएंट इंडिया में, आर.एस. शर्मा सेज फ्यूडलिज्म इज द आउटकम ऑफ तो आर.एस. शर्मा क्या बोल रहा है एंशिएंट इंडिया में? मैं मार्कर ही भूल गई कहाँ। सो आर.एस. शर्मा क्या बोल रहे हैं? इन एंशिएंट इंडिया देयर वाज अ फ्यूडलिज्म। और फ्यूडलिज्म कैसे था? बिकॉज देयर वाज अ लैंड ग्रांट सिस्टम, है ना? तो जो लैंड ग्रांट जो सिस्टम था एंशिएंट टाइम पे, ऑलराइट, सो इन दिस लैंड ग्रांट सिस्टम द लैंड्स वर ग्रांटेड टू ब्राह्मण्स, ब्राह्मदेव। और सबसे पहला लैंड ग्रांट जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस में हमें देखने को मिलता है, जो रुद्र दमन दिए थे, ठीक है? तो लैंड ग्रांट सिस्टम वाज गिवन टू द पीपल। और जब लैंड दी जाती थी, जैसे ब्राह्मण को लैंड दी जाती थी, सो स्टेट कैन नॉट कलेक्ट टैक्सेस फॉर दैट लैंड। लैंड के साथ साथ आपने एंशिएंट इंडिया में पढ़ा होगा, cows were also given, the oxen were given, and the laborers were given so that they can work on that land. So land grant राजा देते थे किसको? ब्राह्मण्स को। किस पर्पस के लिए? जब वो सेक्रीफाइस यज्ञ करवाते थे तो दक्षिणा के रूप में लैंड देते थे, जिसे ब्रह्मदेव बोलते हैं ना। सो द लैंड्स वर गिवन टू द पीपल एंड दीज पीपल वर बिकमिंग वेरी मच प्रोमिनेंट। ये जो लोग क्या हो जा रहे थे? प्रोमिनेंट बन जा रहे थे। कैसे प्रोमिनेंट बन रहे थे? एक एग्जांपल से लेते हैं। सपोज एक एग्जांपल, देयर इज अ स्टेट, है ना, लेट्स से दिस इज अ स्टेट। नाउ द किंग हैज गिवन लैंड ग्रांट टू 10 ब्राह्मण्स। 10 ब्राह्मण्स को राज्य ने क्या दे दिया? जमीन दान में दिया, भूदान, है ना। व्हाट विल हैपन? द किंग कैन नॉट कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम दिस पीपल। पहला बार टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। द आर्मी कैन नॉट अटैक ऑन दैट। आर्मी अटैक नहीं कर सकता है, वहां पे किसी की मनमानी नहीं चलेगी। जो लैंड ग्रांट जिस पर्सन को दिया गया है, ब्राह्मण या किसी को भी, ही विल बी द मेन प्रोमिनेंट पर्सन ऑफ दैट एरिया। जागीरदार सिस्टम में क्या था? जागीरदार को कभी भी ट्रांसफर कर सकते थे, सस्पेंड कर सकते थे, उनका जमीन छीन सकता था। अकबर और मुगल टाइम की बात कर रहे हैं हम। बट इन एंशिएंट टाइम, अर्ली मेडिवल पीरियड में, जिसे आर.एस. शर्मा क्या बोला? आर.एस. शर्मा का मेन आर्गुमेंट हमने क्या देखा? लैंड ग्रांट हो रहा था, ठीक है? इसलिए बोल सकते हैं यहाँ पे दीज पीपल आर बिकमिंग पावरफुल। मान लो दीज पीपल हैड लैंड, ये सब पावरफुल बन गए और किंग कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि लैंड ग्रांट, भूदान दे दिया गया है, लैंड ग्रांट दिया गया है। तो क्या इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि इंडिया में फ्यूडलिज्म था? हाँ, है ना? बोलो। यूरोप में नो ना? हाँ बताओ, क्यों नो? कौन बोला नो? अरे ट्राई टू स्पीक ना, दिस विल बी इंटरेक्टिव टाइप ऑफ क्लास। जो क्लास स्टेज ये होगी, मैं आपको नोट्स पहले दे दूंगा। हमारे क्लास की क्या प्लान होगी? आई विल गिव यू द नोट्स बिफोर अ वीक। जब हम अगले सप्ताह स्टार्ट करेंगे, यू विल हैव अ चैप्टर वाइज नोट्स, यू विल रीड दैट। हम क्लास में नोट्स डिक्टेट नहीं कराएंगे, हम वो नहीं समझेंगे। वी विल अंडरस्टैंड द इवेंट्स। आपके पास नोट्स पहले से होगा या बुक का पहले से पढ़ के आएंगे, तो क्लास विल बी इंटरेक्टिव टाइप, है ना? तो आप बोलिए नो, जो बोला है आप एक्सप्लेन करिए। आप सही बोले हैं जो भी बोला है। आर्मी नहीं था उनके पास, हाँ। हाँ, आर्मी नहीं है, टैक्स नहीं ले सकता है ना? खुद कल्टीवेट करना पड़ेगा इनको, जो उनको जो दान में लोगों दिया गया है। हाँ हाँ, इनको पावरफुल नहीं बन पाया, ठीक है? सो दे आर नॉट पावरफुल। चलो ये भी चीज है, दे आर नॉट पावरफुल। दूसरी पॉइंट है, जब ये राजा बदलेगा, राजा तो हमेशा नहीं रहेगा ना। यूरोप में क्या था? द फ्यूडल लॉर्ड्स वर पावरफुल, बट हियर द किंग्स विल बी चेंजिंग। और इंडिया में क्या है? किंग्स क्या बदल, साम्राज्य बदल जाता है। इन इंडिया वी सी ना, आफ्टर 200 ईयर क्या होता है?
द एम्पायर गेट चेंजेस, बड़ा एम्पायर छोटा बन जा रहा है, छोटा बड़ा बन जा रहा है, तो राजा ही नहीं, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किंग्स आर चेंजिंग, द एम्पायर वाज चेंजिंग, द डायनेस्टीज वर चेंजिंग, सो इसलिए ये लोग पावरफुल नहीं हो रहे थे, पहला चीज है, ठीक है। आर एस शर्मा ने 2-3 एग्जाम्पल दिया है, वो हम समझते हैं थोड़ा सा। आर एस शर्मा देतो बोलते हैं कि देयर वाज अ लैंड ग्रांट, इससे है। दूसरा पॉइंट ही सेज दैट देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ अर्बन सेंटर्स एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी इन एंशिएंट इंडिया, मतलब अर्ली मिडिवल टाइम पे अर्बन सेंटर डिक्लाइन हो रहा था। इंडिया में 2 अर्बनाइजेशन हुआ है, एक क्या मतलब था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में फर्स्ट अर्बनाइजेशन, एंड सेकंड हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धिज्म जैनिज्म, है ना, जब आयरन आया, हमने देखा आयरन आया, ट्रेड बड़ा सेंटर्स आया। सो इंडिया में 2300 BC में, मतलब 2300 BC, 2000 BC एंड देन 600 BC में अर्बन सेंटर था। आर एस शर्मा सेज दैट इन द 8th century, 9th century, 10th century देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ अर्बन सेंटर्स एंड ट्रेड इन इंडिया। और यूरोप में क्या था, फ्यूडलिज्म का मेन कैरेक्टर क्या था, अर्बन सेंटर्स नहीं थे, ट्रेड नहीं था। आज जैसे ही अर्बन सेंटर ट्रेड आया, क्या हुआ, फ्यूडलिज्म डिक्लाइन। सो ही सेज इंडिया may have feudalism type of society in early medieval time। हम अर्ली मिडिवल टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब गुप्ता के बाद, हर्षवर्धन एम्पायर के बाद और दिल्ली सल्तनत से पहले। दूसरी पॉइंट ये बोलते हैं, उस समय फोर्स लेबर बहुत ज़्यादा था, मतलब पिजेंट्स वर फोर्स लेबर की प्रचलन बहुत ज़्यादा थी। और यूरोप में क्या था, फोर्स लेबर था। पिजेंट कैन नॉट गो आउट ऑफ हिज विलेज विदाउट लैंडलॉर्ड्स परमिशन। सो इन एंशिएंट इंडिया वी कैन से दैट देयर वाज अ फ्यूडलिज्म, ठीक है। पर आपने जो आर्गुमेंट बोला वो सही है। इस आर्गुमेंट को सेम चीज सपोर्ट करते BNS यादव भी। हमने मैप देखा है ना इंडिया का अर्ली मिडिवल का, क्या देखा आपने, चालुक्याज वाज एट वन पॉइंट, पालाज वर देयर इन द बंगाल एंड ऑल। फिर हमें गुर्जार प्रतिहार मिलता है गुजरात और राजस्थान वाले रीजन में, चोलाज वर देयर, पांड्याज एंड चेराज वर देयर। सो देयर वर मोर देन 20 इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन द अर्ली मिडिवल टाइम, छोटे छोटे राज्य में बटे हुए थे। तो BNS यादव क्या लिखते हैं कि इंडिया जो था उस समय क्या था, डिसेंट्रलाइज था, जैसे यूरोप था। यूरोप में देयर वाज नो पावरफुल किंग एंड इंडिया आल्सो देयर वाज नो पावरफुल किंग इन इंडिया, है ना, सब लोग बटे हुए थे छोटे छोटे राज्य में। इट मीन्स वी कैन से दैट देयर वाज अ फ्यूडलिज्म। बट ये डिबेट दूसरे हिस्टोरियंस लाते हैं, दे से नो नहीं है। ये बोलते लैंड ग्रांट कैन नॉट बी कॉज, ये BD चट्टोपाध्याय का आप लोग नाम सुने हो, जब बुक पढ़े होंगे RS शर्मा का तो देखा होगा, ठीक है। जो NCERT वाली बुक नहीं, RS शर्मा वाली, उसमें है इनका डिटेल्स। तो BD चट्टोपाध्याय एक बुक लिखते हैं, इनका बुक का नाम है मेकिंग ऑफ अर्ली मिडिवल इंडिया, है ना, पूरा टाइटल है रिप्रेजेंटिंग द अदर्स। इतना आपको पढ़ना नहीं है, बस समझो, ठीक है। तो रिप्रेजेंटिंग द अदर, है ना, इस बुक में डिफाइन करते हैं BD चट्टोपाध्याय कि इन इंडिया में फ्यूडलिज्म सिस्टम नहीं था। लैंड ग्रांट कैन नॉट बी कॉज, जैसे ही गिव सम एग्जांपल ना, जो ब्राह्मण थे दे कैन नॉट मेंटेन आर्मी, जिनको लैंड मिलना है, पावरफुल नहीं थे, द किंग कैन रिप्लेस हिम, ये सब कर सकते थे। तो लैंड ग्रांट कैन नॉट बी अ रीजन ऑफ डिबेट। इस पे मेंस वगैरह पे आ सकते हैं। दूसरा चीज है जो अर्बन डिके का जो आइडिया है, जो अर्बन डिक्लाइन हो रहा था, ऐसा नहीं था। ही गिव्स मेनी एग्जांपल इन साउथ इंडिया वेयर द अर्बन सेंटर्स वर फ्लरिशिंग। इवन चालुक्याज के टाइम पे महाराष्ट्र में और जो अभी का जो कर्नाटका रीजन है, वहाँ पे अर्बन सेंटर्स बहुत सारे थे। अर्बन सेंटर्स वर नॉट इन डिक्लाइन ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड, सो देयर वाज अ नो फ्यूडलिज्म। अदर पॉइंट वाज दैट देयर आर मेनी सच एग्जांपल वेयर द ट्रेड एंड कॉमर्स वाज फ्लरिशिंग इन इंडिया। इस समय ऑफ कोर्स देयर इज सेंट्रलाइजेशन, पर स्टेट फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से हो रहे थे। जैसे राजपूताना रीजन, राजपूत वर्ड जानते हो आप लोग, राजपूत। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन राजपूत एंड क्षत्रिय, कौन बताएगा? हाँ, क्लास, क्लैन, हाँ क्लास हो गया। तो राजपूत इज ए क्लैन एंड क्षत्रिय इज अ क्लास। हिंदी में राजपूत एक जाति है और क्षत्रिय एक वर्ण है, वर्ण व्यवस्था है ना। हाँ, डायनेस्टी तो एक पॉलिटिकल टर्म हो गया ना। हम सोशल टर्म में अगर हम बात करें, सोशल टर्म में है
ऑल राइट, तो हम जानते हैं क्षत्रिय वाज फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, वैदिक टाइम से हम वी हैव डिफरेंस दैट देयर आर 4 वर्ण क्षत्रिय वाज देयर, बट राजपूत वर नॉट ऑलवेज देयर। राजपूत हमेशा से नहीं है। राजपूत का फॉर्मेशन कब हुआ पता है? अच्छा, राजपूत इंडिया में हर जगह नहीं मिलते थे उस समय, कहाँ थे? राजस्थान जो रीजन, जो गुर्जर प्रतिहार वाला जो रीजन है, आपने मैप देखा है ना, इन मैप गुर्जर प्रतिहार रीजन कहाँ पे थे? जैसे इंडिया के मैप में इस वाले रीजन जो गुजरात और राजस्थान वाला जो रीजन है, इन दैट रीजन राजपूत्स वर देयर। सो इन द गुर्जर प्रतिहार रीजन राजपूत्स वर देयर, व्हाई दे आर नॉट इन साउथ इंडिया और बिहार इन सब, पर अभी तो राजपूत हर जगह मिलते हैं। वी आर इन द अर्ली मिडिवल टाइम। सो राजपूत जो क्लैन है, उनका जो प्रोडक्शन है, कमिंग ऑफ द राजपूत्स वर इन दिस टाइम ओनली। अर्ली मिडिवल टाइम पे ही राजपूत लोग आए, उससे पहले राजपूत हाँ, तो स्लोली छोटे रीजन से स्टार्ट हुआ, फिर राजपूत जो है अभी का जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात वाला जो रीजन है, इन सब में अर्ली मिडिवल टाइम पे फ्लरिश होता है। तो ये जो आर्गुमेंट है, द फॉर्मेशन ऑफ द लीनियज पॉलिटी वाज डेवलपिंग थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम। सो ही सेज, पीडी चट्टोपाध्याय बोलते हैं कि ऑफ कोर्स देयर वाज अ डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब नए नए राज्य बन रहे थे, एंड दैट इज द मेन कॉज ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंडिया अकॉर्डिंग टू बीएनएस यादव। बट ये जो डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा था, इसको हम मेन कॉज नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज देयर वर मेनी डेवलपमेंट्स ऑफ मेनी लीनियज सोसाइटी, नए नए कम्युनिटी बन रहे थे। राजपूत वाज वन सच कम्युनिटी इन दैट, एंड दिस पीपल बिकम पावरफुल एंड देन दे फॉर्म न्यू स्टेट्स इन दिस रीजन, जो सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया में नए नए राज्य बनाए। तो दिस न्यू, द कमिंग ऑफ द न्यू डायनेस्टीज इन इंडिया कैन नॉट बी ए कॉजेज ऑफ फ्यूडलिज्म। इंडिया में फ्यूडलिज्म नहीं हो सकता है, ये मेन कॉजेज है, ठीक है। दूसरी पॉइंट बोलते हैं कि देयर इज अ इंटीग्रेटिव पॉलिटी, सेम चीज है ना। जैसे आप मान लीजिए पृथ्वीराज चौहान आए एंड ही हैड टू फाइट विद मोहम्मद गौरी, ही मेड अलायंस एंड देन एट वन टाइम ही डिफीटेड हिम, है ना। इंडिया में जैसे कि साउथ इंडिया में चले जाओ, चोलाज वर वेरी पावरफुल, वी कैन से दैट द स्टेट वाज नॉट पावरफुल एट दैट टाइम। चोला इतने पावरफुल थे दैट फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में हमारे पास कॉलोनीज था, है ना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चोलाज, है ना। So we cannot say that there was a feudalism according to some debate, है ना। डीएन झा कई सारे और भी एग्जाम्पल देते हैं। ये बोलते हैं जो लैंड ग्रांट जो हो रहा था ना उस समय, जिससे एक ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस बढ़ रही थी, और जो भक्ति कल्ट आप देखेंगे ना, इसी समय आया है इंडिया में। कब? सैविज्म और वेस्टर्निज्म कब आया है? सब गुप्ता डायनेस्टी के टाइम और उसके बाद आया, उससे पहले नहीं था। उस समय बुद्धिज्म सबसे फ्लरिश। अर्ली मतलब बीसी वाले टाइम पे जब जैनिज्म बुद्धिज्म था, उस समय सैविज्म नहीं था, आपको पता है ना, सैविज्म वेस्टर्निज्म नहीं था। इट वाज अ सनातन धर्म, वैदिक ट्रेडिशन थे, फिर बुद्धिज्म जैनिज्म आया, बाद में गुप्ता, और उसके बाद भक्ति कल्ट आता है इंडिया में। सो द राइज ऑफ भक्ति कल्ट, डीएन झा मानते हैं दैट द राइज ऑफ भक्ति कल्ट वाज द मेन पॉइंट बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म था जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी था, जो लैंड ग्रांट की वजह से जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी था, उसको फ्यूडलिज्म बोलते हैं। बट दिस आर्गुमेंट इज ऑल्सो नॉट वैलिड। और इंडिया में लास्ट में अगर मुझसे पूछेंगे तो इंडिया हैड अ डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी एट दैट टाइम। एक हिस्टोरियन, इनका आर्गुमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हरबंस मुखिया। ही से इन इंडिया इन द अर्ली मिडिवल टाइम इज इट विजिबल टू ऑल प्री पीजेंट इकोनॉमी। तो मतलब हरवंश मुखिया सेज इंडिया हैड अ फ्री पीजेंट इकोनॉमी, मतलब उस समय था द पीजेंट्स वर फ्री, एंड फॉर सम टाइम वी कैन से दैट इंडिया में हैव सर्फडम। सर्फडम समझ रहे हैं ना? सर्फडम कौन जानता है? सर्फ मतलब क्या होता है? सर्फडम जैसे कि इंडिया में फेडरलिज्म है नहीं है, सवाल आया था ना पॉलिटी में, वेदर इंडियन गवर्नमेंट इज अ फेडरल गवर्नमेंट, का आंसर क्या आता है? तो सर्फडम भी सेम ही होता है, ठीक है। मतलब इट्स नॉट फेडरलिज्म, बट वेयर द सर्फ मतलब द फोर्स लेबर वाज देयर, है ना, द हाफ फेडरलिज्म इसको बोलते हैं, ठीक है। द फोर्स लेबर वाज देयर एंड इट वाज नॉट कंप्लीट फेडरलिज्म, है ना। सो द पीजेंट्स वर डूइंग एंड वर्किंग इन द सोसाइटी फोर्सफुली, उनके पास बहुत सारा प्रॉब्लम था, बट उनके पास राइट था मूवेबल करने का। तो एक कुछ लोग मानते हैं कि इंडिया में सर्फडम था,
अर्ली मिडिवल टाइम में इंडिया हैड अ, जैसे मॉडर्न इंडिया में क्या है, वी हैड अ कास्ट फेडरलिज्म जैसे हम बोलते हैं, इन इंडिया वी हैड अ, in ancient India, not ancient, in the early medieval India, we had a serfdom but not feudalism. But if you take example of Urban Smutia, Indian society was a free peasant economic society, मतलब peasants were not forced. तो इस तरह से डिबेट हम मिलता है वर्ल्ड लेवल पे, दो तरह से चेंजेस हमें मिलती है. एक तरह से ग्रीको रोमन एम्पायर डिक्लाइन होता है एंड ऑन द अदर हैंड फ्यूडलिज्म आती है. इंडिया में भी फ्यूडलिज्म आता है, डिबेट है. और सो हाउ डू वी कंक्लूड हियर, आप बताओ क्या इंडिया में फ्यूडलिज्म था? हाँ चलो, जैसा कुछ था मतलब सर्फडम बोल दो. हैं आपने इस पे कुछ आपने वर्ल्ड लेवल पे मैप देखा ना, किस तरह से चीजें हुआ, किस तरह से फ्लरिश हुआ. इस पे कुछ डाउट हो डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आप लोगों से परिचय लेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप टुडे. फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विद द अर्ली मिडिवल टॉपिक, है ना. अभी तक कुछ डाउट है फ्यूडलिज्म वाले टॉपिक पे, और यू कैन से समथिंग, यू कैन से सम पॉइंट्स ऑन दैट. एनीवन फ्रॉम द लास्ट वन? कोई डाउट नहीं है? आपका नाम क्या है? हाँ हाँ, हर्षराज. मैं पीछे, आपका नाम हर्षराज है ना? हाँ पीछे, सबसे पीछे अरविंद सिंह. आपने क्या किया है अरविंद? ग्रेजुएशन कंप्लीट है आपका? फ्रॉम वेयर? शारदा यूनिवर्सिटी. विच सिटी? नोएडा. नोएडा. So university, Sharda University has college also. They have different college or it is a university? And then आपका ऑप्शनल पेपर क्या है? अभी डिसाइड नहीं है. चलो, तो कोई डाउट नहीं है आपको, हिस्ट्री समझ में आया? तो आपने एंशिएंट पढ़ लिया है. ऑलराइट, सो वी विल स्टार्ट एंशिएंट व्हेन वी विल फिनिश मिडिवल, है ना. ये बेस्ट. हाउ? हाँ, तो दे विल टू, यू विल गेट इट इन आर्ट एंड कल्चर. बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड, बट सदर्न इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ एंशिएंट. तो देयर आर डिफरेंट बैचेस ना इन दिस, तो डिफरेंट बैच के लिए फिर से स्टार्ट होगा वो. एंशिएंट इंडिया दे विल अरेंज अ डिफरेंट बैच. देयर आर 3-4 बैचेस हियर. तो व्हेन देयर विल एंशिएंट, बट यू मे बी मर्ज विद दैट बैच. जो नई बैच आएगी एंशिएंट इंडिया में, आपको मर्ज कर दिया जाएगा जब आपके सब कंप्लीट हो जाएगा. So you can ask the concerned person here. I am teaching ancient India to some other people in the GS, but time उनका slot अलग होता है. So you can ask them, you can join there, है ना, जो दूसरी टाइम स्लॉट है. But you will have to see whether you are free at that time or not, है ना. तो हो जाएगा, है ना, जिनका नहीं हुआ है. मतलब स्पेशली बुद्धिज्म, जैनिज्म विल बी कवर्ड इन योर आर्ट एंड कल्चर पेपर इन डिटेल, है ना. बट संगम शायद कवर नहीं कर पाएंगे उसमें, संगम लिटरेचर. और यू कैन डू वन थिंग, यू कैन हैव अ लुक ऑन वीडियोज. वीडियो देख सकते हैं आप संगम लिटरेचर पे. हाँ, आई कैन गिव यू नोट्स ऑन दैट, है ना. आई कैन सेंड यू माई नोट्स, और यू कैन हैव अ लुक ऑन द वीडियोज, मतलब दैट इज मेड फॉर द डिफरेंट क्लास, है ना. जो दूसरी जो बैच है आपकी यूपीएससी वाली, उसका जो मैं पढ़ाऊँगा, आप वहाँ से वीडियो देख लेना. और वी कैन डिस्कस डाउट इन द लास्ट हाफ एन आवर. मतलब जिन लोग एंशिएंट इंडिया में सब जो पोर्शन बच गया है, एंड व्हेन आई कंप्लीट दैट बैच, सो वी कैन हैव अ डिस्कशन व्हेन यू वॉच वीडियो और व्हेन यू रीड इट, है ना. वी कैन टेक लास्ट 20 मिनट्स ऑफ आवर क्लास ईच वीक फॉर द डिस्कशन. लास्ट 30 मिनट हम ले सकते हैं. वी विल टेक टाइम. प्लानिंग ये है कि द मिडिवल इंडिया विल बी, आई होप it will be completed in 18 to 20 lectures. We will complete medieval India in 18 to 20 lectures. Since you are a GS batch, so once the completion of all topic, we will discuss prelims questions and GS paper 1 questions. जितने भी टॉपिक खत्म होगा, जैसे 3 दिन का एक लेक्चर है, मान लो 1 topic is completed in 3 days. So on the last 3 days, we will have a look on the prelims, previous year question papers and also GS paper 1 पे हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है. देयर विल बी क्लास टेस्ट आल्सो, एज यू नो सैटरडे क्लास टेस्ट होता है, बट
वंस वी कंप्लीट एटलीस्ट 1 वीक देन वी विल हैव अ क्लास टेस्ट, है ना। फिर हम देखते हैं क्लास टेस्ट में जीएस पेपर 1 भी रहेंगे एंड प्रीलिम्स वाले भी क्वेश्चंस टाइप रहेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें डेवलपमेंट हो जाएगा। मेन पॉइंट है यहाँ पे हमें सिंपली नहीं समझना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक सो दैट व्हेन यू सिट इन द एग्जाम और व्हेन यू रीड योरसेल्फ आफ्टर दिस, सो दैट एटलीस्ट यू शुड हैव अ क्लैरिटी इन इंडियन हिस्ट्री। क्लैरिटी रहेगा, क्लैरिटी टाइम से होता है, टाइम है, फ्रेम है, तो आप अच्छे से कर पाएंगे उसमें चीज़ें, ठीक है। सो क्लैरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, तो आपने ब्रॉडर मैप समझा कि हिस्ट्री कैसे शुरुआत हुआ, किस तरह से बना, इंडिया में आपने एंशिएंट हिस्ट्री पूरा पढ़ लिया, मिडिवल कब से स्टार्ट होता है वो भी जानते हैं, है ना। समझ में आया कब से मिडिवल स्टार्ट हो रहा है? अर्ली मिडिवल से। एंशिएंट कब खत्म हो रहा है? व्हेन इज एंशिएंट हिस्ट्री एंडिंग इन इंडिया? डिक्लाइन ऑफ गुप्ता और हर्षवर्धन एम्पायर जो है, हर्षवर्धन का जो रूल है, हर्षवर्धन के, तो हर्षवर्धन का जो रूल है उसे हम मिडिवल में डालेंगे या एंशिएंट में डालेंगे? हाँ, ऐसे काशी फेडरलिज्म जैसा थोड़ी ना है। हर्षवर्धन का जो रूल है, बेसिकली वी से एंशिएंट हिस्ट्री टिल द टाइम ऑफ 750 AD रफली। सो 750 AD के बाद जो पीरियड स्टार्ट होता है, दैट पीरियड इज कंपेयर्ड एज मिडिवल पीरियड, है ना। तो हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी इसी तरह से बनती है। All right. If you see ancient period that you have completed, most of you have completed, will go from the ancient time to 750 AD. Then 750 AD to 1200 is considered as early medieval. 1206 या 1200 भी बोले, 1206 में जब दिल्ली सल्तनत का स्थापना होता है, that period is called as a complete medieval period, है ना। तो 1206 to which period? 1750 is called as medieval period, and then 1750 to 1947, है ना, is called as मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। और 47 के बाद हम उसे इंडिपेंडेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंट या कंटेम्प्रोरी पीरियड बोलते हैं ना। तो इस तरह से डिवाइड करते हैं यहाँ पे पीरियड्स को। पर आप यूरोप में जाएंगे, आपको कोई डाउट नहीं है ना, देन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो डाउट है तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट द डाउट, देन वी विल कंटिन्यू दिस। कोई डाउट नहीं है अभी? आप लोगों को कुछ सवाल पूछना है, कुछ समझना है? नो? ऑलराइट। तो जो पीरियड्स है यहाँ पे आप देखेंगे कि अर्ली मिडिवल पीरियड जो है किसको बोल रहे हैं? 750 टू 1200। सो व्हेनेवर यू ट्राई टू रीड, तो आपके पास माइंड होना चाहिए। 750 में क्या था? अर्ली मिडिवल पीरियड में फ्यूडलिज्म जैसा डाउट था, सोसाइटी बहुत डिफरेंट पार्ट में बटी हुई थी, कास्ट सिस्टम भी इसी समय सबसे ज़्यादा बन रहा था। जैसे सोशल प्रोलिफिकेशन, जो नए नए जो कास्ट बन रहे थे, जैसे सबसे पहला जो कास्ट फॉर्मेशन हुआ, जो सबसे फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट कास्ट जो फॉर्मेशन हुआ, कौन सा कास्ट था जिसका फॉर्मेशन लैंड से रिलेटेड है? ब्राह्मण तो सबसे पुराना है। इन सब चार के बाद जो चार जो वर्ण हैं, दैट बिकम कास्ट इन द लेटर पीरियड। अच्छा, ये सब जो वर्ण सिस्टम था एंशिएंट इंडिया में, कास्ट सिस्टम कैसे बन गया, कब बना होगा? लेटर वैदिक में। उस समय भी कास्ट हमें उतना देखने को नहीं मिलता है। जो सबसे ज़्यादा जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी, कब बनी थी? मौर्य के टाइम पे रहा होगा, मौर्य टाइम पे। और सबसे पहला वन ऑफ द फर्स्ट जो इम्प्लीकेशन है कास्ट का, वो कायस्थ का देता है। कायस्थ कास्ट आपने सुना है? कायस्थ, हाँ, अच्छा, एक तरह के ब्राह्मण होते हैं। आपने कायस्थ नाम सुना है ना आप लोगों ने? कायस्थ इज ए कास्ट, जैसे यादव एक कास्ट है ना, तो कायस्थ इज अ कास्ट। इनका आर एस शर्मा इनके बारे में बोलते हैं। मतलब ये सब चेंजेस आपको एंशिएंट टाइम में देखने को मिलता है। आर एस शर्मा क्या बोलते हैं? हुआ क्या था, जब लैंड ग्रांट ज़्यादा होना शुरू हुआ ना,
जब वेन द लैंड ग्रांट वाज इन लार्ज नंबर्स, लैंड ग्रांट जब होता है तो क्या होता है, लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, वी हैव टू मेंटेन द लैंड रिकॉर्ड्स, ऑल द रीडिंग एंड द टीचिंग एक्टिविटीज वर डन बाय ब्राह्मण। सारा पढ़ना लिखने का काम किसका था, ब्राह्मण लोगों का था। अब लैंड ग्रांट हो रहा है, लैंड ज़्यादातर संख्या में दी जा रही है, लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, पहले लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन होती नहीं थी, तो हु विल मेंटेन दिस लैंड रिकॉर्ड्स, ब्राह्मण, बिकॉज दे आर द वन हु आर एजुकेटेड इन द सोसाइटी। ब्राह्मण अब क्या हो रहे हैं, ब्राह्मण का पहला काम था सिर्फ पूजा पाठ करना, सैक्रिफाइसेस करना, बट नाउ द ब्राह्मण्स आर गिवन लैंड ग्रांट्स। ब्राह्मण को अब लैंड ग्रांट्स दी जा रही थी, मतलब नाउ द ब्राह्मण्स वर आल्सो रिच। पंडित लोग रिच नहीं होते हैं, पंडित लोग ज्ञान से रिच होते हैं, पैसे से नहीं होते हैं। आप देख लेना मंदिर में जाना, पंडित लोग रिच नहीं होते हैं। तो इन एंशिएंट टाइम द पंडित, द ब्राह्मण्स वर नॉट रिच, बट व्हेन दे आर गिवन लैंड ग्रांट्स एंड द गिफ्ट बाय द किंग, दे बिकम रिच। तो आप एक मैं एग्जांपल देता हूँ, टीचर्स जो होते हैं सोसाइटी में कौन होते हैं, किस क्लास से लोग आते हैं टीचर्स। इंडियन सोसाइटी को कई 3 पार्ट में बांटते हैं ना, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो जो टीचर्स होते हैं किस क्लास से होते हैं, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास से टीचर नहीं होते हैं। अपर मिडिल क्लास का मतलब है आपका सालाना इनकम 1 करोड़ 2 करोड़, अपर मिडिल क्लास इन कंटेम्पोरेरी टाइम्स। So those people who are from teaching background family and their income is more than 1 crore annually, वो टीचर्स बनेंगे। गवर्नमेंट टीचर की बात कर लो, उनकी सैलरी 3 लाख रुपए होती है प्रोफेसर की, तो दे वांट बी ए टीचर, है ना। तो द पॉइंट ये है कि उस समय एंशिएंट इंडिया में द ब्राह्मण का मेन काम था पढ़ना लिखना। नाउ दे आर बिकमिंग रिच, तो व्हाई विल दे डू दिस एक्टिविटी। सारे ब्राह्मण तो इस समय अमीर तो नहीं हो जाएंगे ना। अभी अब कंटेम्परेरी टाइम में सारे ब्राह्मण अमीर हैं नहीं, उनकी स्टेटस दयनीय होती है। ऑल पीपल आर नॉट सेम, सारे यादव गरीब नहीं होते। तो द पॉइंट इज दैट इन एंशिएंट टाइम दे वर इन सर्च ऑफ सम टाइप ऑफ क्लास, सम टाइप ऑफ पीपल हु कैन डू दिस जॉब। तो जो लैंड ग्रांट सिस्टम का जो अकाउंटेंट जो मेंटेन करने की जिम्मेदारी थी, तो अब यहाँ पे पॉइंट आया दैट दे हैड टेकन सम पीपल फ्रॉम वेस्ट यार्ड who can read, write and do this activity। तो यहाँ पे सबसे पहला जो लैंड ग्रांट से जो कास्ट उभर के आती है, द फर्स्ट कास्ट विच इमर्ज फ्रॉम द सिस्टम ऑफ लैंड ग्रांट और कास्ट सिस्टम में बनाए वो कास्ट था। इनका मेन काम था पढ़ना लिखना एंड दे वर मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड। से आर एस शर्मा की एक बुक है सोशल प्रोलिफरेशन इज अर्ली मिडिवल इंडिया। तो अर्ली मिडिवल इंडिया के टाइम पे कास्ट वर्ड आता है, सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तो इस समय एंशिएंट टाइम पे हम देखते हैं, पर हमारा सबसे बड़ी क्रोनोलॉजी में दिक्कत ये होती है कि जब भी हम पढ़े तो क्रोनोलॉजी पे ध्यान देते हैं। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो आप एक कंफ्यूज मत होना कि इंडिया में अर्ली मिडिवल 9th सेंचुरी में 8th सेंचुरी में था, तो वर्ल्ड में भी अर्ली मिडिवल इसी टाइम पे हो। वर्ल्ड हिस्ट्री में अर्ली मिडिवल होता ही नहीं, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री किसने लिखा है, ब्रिटिशर्स ने पहले। द हिस्ट्री वी हैव इन आवर टाइम, जैसे आपने ऋग्वेद नहीं बोला टाइम, 1500 से 1000 BC किसने दिया, मैथ्स म्यूलर ने टाइम दिया, दे वर द ब्रिटिशर्स। उन्होंने, क्योंकि हमने ये भी देखा कि वो टाइम नहीं होना चाहिए था सही हिस्टोरिकली, बट इट इज हिज असम्पशंस। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत डिफरेंट होता है। अगर आप पीरियड देखेंगे, ए वाला पीरियड, दिस 750 पीरियड इज कॉल्ड इन इंडिया एज अ medieval period, but the world history, the modern period starts from this time only, and they say this is the early modern period. The world history में the people become modern in the 15th century only. So in India, the 18th century is a period of, the early 18th century is a period of medieval time, but in the world, the 15th century, in the 15th 16th century, the Europeans become modern. आपने एक वर्ड सुना है रेनेसा, सुना होगा आप लोगों ने। रेनेसा क्या होता है? हाँ, और कुछ बताओ रेनेसा के बारे में। रिवर्स क्यों, वाई? हाँ हाँ, मार्टिन लूथर कौन थे? वो तो रिफॉर्मेशन पे आ गए आप लोग।
So Martin Luther is a name from Reformation, where he challenged the Catholic, है ना. और नए धर्म मतलब क्रिश्चियनिटी में दो पार्ट सेक्ट बट गया, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट. बट हम रिफॉर्मेशन से थोड़ा पहले जा रहे हैं, रेनेसा पीरियड. तो रेनेसा जब हुआ था, इटली से स्टार्ट हुआ, वो जर्मनी से स्टार्ट होता है ना, जो रिफॉर्मेशन है. एंड रेनेसा स्टार्टेड फ्रॉम रोम, इटालियन जो सिटी स्टेट से वहाँ से स्टार्ट होती है. ड्यूरिंग द रेनेसा वी केम टू हैव आइडिया दैट देयर इज अ मॉडर्न एंशिएंट मिडिवल. इससे पहले मिडिवल था ही नहीं. जैसे आज हम रह रहे हैं ना 21st सेंचुरी में, क्या 800 वर्ष बाद हमें भी मॉडर्न लोग बोलेंगे? आफ्टर 800 ईयर्स विल दिस पीपल कॉल अस मॉडर्न? उनके लिए तो हम क्या होंगे, मिडिवल होंगे, क्या होंगे वो जाने. बट द पॉइंट इज व्हाट वाज हैपनिंग द 14th-15th सेंचुरी, द इटालियन पीपल, द इटालियन थिंकर्स, रेनेसा में जो रेनेसा टाइम के थिंकर्स, फिलोसफर्स, दे स्टार्टेड कॉलिंग देमसेल्फ एज अ मॉडर्न पीपल. So 15th century में the people immediately say that they are moderns, and who are the medieval then? The people who were between 14th to 9th century. 9th century में क्या हुआ? Greco-Roman was declining. So the people who were in the Greco-Roman Empire are the ancient people, and the people who are in the 14th century, 15th century are the modern people. So the people between the 9th and 14th century में भी कॉल एज अ मिडिवल पीरियड. अब मिडिवल पीरियड में क्या हो रहा था इनके अनुसार? अनार्की था, फ्यूडलिज्म था, स्टेट नहीं था, ट्रेड नहीं था, रिलीजन सही से नहीं फॉलो हो रही थी. तो स्पेशली दिस पीपल कॉल दिस पीरियड एज अ मिडिवल पीरियड. इन लोगों ने ह्यूमिलिएशन करने के लिए स्टार्ट किया, और इस वे में इंडियन क्रोनोलॉजी बनती है हमारा, इंडिया में भी और मॉडर्न में भी. सो व्हेनेवर यू ट्राई टू लुक एट इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑलवेज थिंक कि हमारा टाइम पीरियड क्या है और कैसे पढ़ रहे हैं. 2-3 चीज़ें और हैं. जैसे आप में से कितने लोग हिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम हिस्ट्री ऑनर्स? एनीवन फ्रॉम यू आर फ्रॉम हिस्ट्री ऑनर्स इन योर ग्रेजुएशन? नो? ऑल राइट. सो डू यू नो व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री? यू नो दैट इफ यू टेक एनी सेंचुरी, इफ यू टेक एनी पीरियड, एनी डायनेस्टी, एनीथिंग, तो 5-6 चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है हमें हिस्ट्री में समझने के. क्या होता है? जैसे मान लो गुप्ता एम्पायर है, तो गुप्ता एम्पायर में हमें क्या पढ़ना होता है? पॉलिटी ऑफ द गुप्ता एम्पायर, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया. पॉलिटी में हम क्या पढ़ते हैं? द हु वर द किंग, हाउ दे डिफीटेड, हाउ दे फाउंडेड एम्पायर, व्हेन दे फाउंडेड, है ना, कैसे स्पेंड किया. पॉलिटिकल एस्पेक्ट के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है यूपीएससी दृष्टिकोण से? एडमिनिस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो एडमिनिस्ट्रेशन विल बी अंडर द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, वेदर इट वाज ए गोल्डन एज और नॉट, है ना. सोशल एस्पेक्ट भी यूपीएससी में, पर यूपीएससी के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर रहता है. तो वन इज अ पॉलिटिकल एस्पेक्ट, जिसमें सबसे कम क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी में, है ना, टर्म. अदर इज अ पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादातर क्वेश्चंस मॉडर्न पीरियड से पूछते हैं, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से. द अदर इज अ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल में रिलीजन आते हैं, रिलीजन्स विल कम. यूपीएससी में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछेंगे कहाँ से पता है? डिसेंट्रलाइजेशन और लोकल लेवल से क्वेश्चन पूछते हैं. इफ यू सी द 10 years यू विल फाइंड लोकल सिस्टम, मतलब क्वेश्चन सीधा मॉडर्न एम्पायर से उठ के नहीं आएगा. उस समय जो छोटा राज्य कौन है अर्ली मिडिवल में? चालुक्याज, टोला, गुर्जार, प्रतिहार, जिन लोगों का नाम हम सबसे सही से जानते भी नहीं है. तो क्वेश्चंस वहाँ से उठ के आते हैं. अगर आप इस साल का क्वेश्चंस देखेंगे प्रीलिम्स का, कितने क्वेश्चंस आए थे प्रीलिम्स में? 13 क्वेश्चंस वर दिस ईयर. तो आपको पता है 13 क्वेश्चंस क्यों थे? क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं आया था. इफ़ यू सी द प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर ऑफ 1 year, मतलब, और आप इनका सिलेबस देख लो पहले. व्हाट इज द नेम ऑफ द सिलेबस ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन द प्रीलिम्स? कौन बताएगा? सिलेबस का नाम क्या है? You have seen the syllabus of prelims exam, right? There are 2 papers in prelims, है ना, paper 1 and paper 2. In paper 1 हिस्ट्री का सिलेबस में एक लाइन होता है. क्या लाइन होता है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना. दिस इज अ पेपर ना, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट. इट मीन्स द यूपीएससी सेज that the half portion is given to history of India
and half portion is given to the Indian national movement only. If you see this timeline, अगर ये टाइम देखते हैं, this whole is one part, और modern history starts from 1750 onwards, but national movement कब start होता है? 1885 से आप बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं यूपीएससी हाफ जो ध्यान है कहाँ से दे रहा है? 1885 से दे रहा है, मतलब आधा, मतलब यूपीएससी सीधा बोल रहा है that the half of the question of your history in the prelims will be from 1885 to 1957. इसलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से होता है? इसी टाइम पीरियड से होता है ना, इन नेशनल मूवमेंट. सो दैट इज वाई नेशनल मूवमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट. बट दिस टाइम व्हाट हैपेंड? दे आर 13 क्वेश्चंस, इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया से थे. For the last 10 years, you will find there were 1 or 2 questions from ancient and medieval India. 1 or 2 to each. Modern से 10-12 क्वेश्चंस होते हैं. But this time ancient से बहुत क्वेश्चंस थे. कितने क्वेश्चन थे ancient से? आपने पेपर देखा है प्रीलिम्स का? Anyone have seen this year question paper? No? अच्छा, आप लोग तो पढ़ना शुरू किए तो सबसे पहले क्या किया बताओ? You joined the coaching or before that you did something? आपका क्या स्ट्रेटेजी है? आपने क्वेश्चन नहीं देखा, मतलब क्वेश्चन पेपर वगैरह सब? अच्छा, एक एग्जाम्पल एक करा लेते. कोई हाथ उठाओ जिससे मैं सवाल पूछूंगा. नॉर्मल रेज एनीवन, आप बताओ. हाँ, सो यू आर इन विच क्लास? आर यू डूइंग समथिंग, स्टडिंग? या विच? एंड यू हैव डन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम वेयर? व्हेन? 20. So it is 3 years. 23 this year only. So when did you decide that you will go for UPSC preparation? 23 only. So how did you decide? Okay. So सोचने के बाद क्या किया आपने? मतलब कितने महीने पहले सोचा था? कितने महीने पहले सोचे थे कि you will join final year? So did you do something before joining? क्या किया आपने? So you have seen the syllabus of UPSC. So have you also seen the question paper? हाँ, तो आपने इस साल का क्वेश्चन पेपर देखा? ऑलराइट. सो ये स्थिति सबके साथ है क्या? है ना? तो हमें आज इतना पढ़ना नहीं चाहिए था, हमें सिलेबस ही सही से बात करनी चाहिए थी. देखो, सबसे पहले क्या है कि हमें क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए. वी शुड सी द लेवल एंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वेश्चन पेपर. आई थॉट आप यहाँ पहले ही पढ़ चुके हैं, सो मैंने इतने इतने टॉपिक्स बताए, नहीं तो आज हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल. ठीक है, सबसे बड़ी पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला जब इफ यू सी द टॉपर्स वीडियोज, हमारे पास टाइम है ना अभी? हाँ, 10 मिनट है. इफ यू सी द टॉपर्स वीडियोज, व्हाट विल यू फाइंड? यू विल बी सजेस्टेड लेवल 1 पे आप जाइए. अभी आप जाना तो घर पे सेम चीज करना. ठीक है, एट द लेवल 1 यू शुड डू एनसीईआरटी स्टडी. यूपीएससी में हर टॉपिक में द क्वेश्चंस इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली. मतलब आधा से ज्यादा क्वेश्चंस यूपीएससी में डायरेक्टली एनसीईआरटी से. दे कवर्स ऑल द सिलेबस 6 to 12. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we should refer NCERT. जो टीचर्स होंगे यहाँ पे, they will also consult NCERT. So आपके जो नोट्स होंगे NCERT और जो एडवांस वर्जन ऑफ द बुक है टॉपिक, तो उससे मिलते हैं. ठीक है, तो NCERT हमें पहले क्या करना चाहिए था? अब कोचिंग है तो साथ में तैयारी करवाएंगे हम, पर साथ में आपको करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें आपको भी. ठीक है, आप मेहनत करेंगे, हम करेंगे, तब तो निकलेगा यूपीएससी. दोनों को करना पड़ेगा, है ना, और हम नहीं करेंगे तो आपसे भी नहीं होगा. द पॉइंट इज वी विल डू लेबर, you also do hard work. Okay, and then we will find it together. The first is the NCERT. The second stage is PYQ. Previous year questions हमें देखना चाहिए at least 10 years. तो आप लोग एक काम करना, मार्केट में दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, पिछले 24 साल 23 साल के क्वेश्चन पेपर्स उसमें होते हैं. So you go and buy. ऑनलाइन मिलती है ना. मृणाल सर के जो क्वेश्चन पेपर है ना, so they will have solved question papers. You buy that और उससे प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, द सेकेंड पॉइंट इज दैट वी शुड गो फॉर PYQ. नाउ सी हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू सॉल्व. कितने परसेंट कर पा रहे हैं? क्या 50% है, 30% है,
30 तो कर लेंगे हम, ठीक है, 30 तो हो ही जाना चाहिए। आपने 10th में तो पढ़ा ही एनसीईआरटी। सो फर्स्टली रीड एनसीईआरटी, देन ट्राई टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एट द लेवल ऑफ दिस स्टैंडर्ड। आपको देखना है कितना % आप सॉल्व कर पाते हैं। देन यू हैव टू मूव इनटू द अदर स्टेप। अदर स्टेप क्या है? रीड टेक्स्ट बुक। जैसे कि इंडियन पॉलिटी में कौन से बुक पढ़ते हैं हम? लक्ष्मीकांत। तो लक्ष्मीकांत हमें 3rd स्टेज में पढ़ना चाहिए। 1st स्टेज में क्या पढ़ना चाहिए? एनसीईआरटी। देन वी हैव टू डू पीवाईक्यू। नाउ वी हैव टू असेस हम कितने % में, 30 में, 40 में, 50 में है नहीं है। आपको पता है ना प्रीलिम्स कितने % पे क्लियर हो जाता है? इफ यू हैव टू क्वालिफाई फॉर मेंस, हाउ मेनी % डू यू नीड इन योर प्री? 45 में नहीं होते हैं। 50, 55 यूआर के लिए 55 और 56, मतलब 55 है तो हो जाता है। समटाइम्स ये 58, 59 भी जाता है, बट नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ऑन एन एवरेज आप मान लो कि अगर आपका 70% क्वेश्चन सही है और 15%, 10% निगेटिव में चला गया है, 65 अगर आपका सही है और 10% निगेटिव में चला गया है, तो समझ लो यू आर गोइंग टू क्वालिफाई। तो यू हैव टू असेस हियर आप इस पे किस % पे हैं। देन द टेक्स्ट बुक विल हेल्प यू और योर क्लास इज गोइंग टू हेल्प यू, है ना। क्लास में बहुत सारे नोट्स मटेरियल, टेस्ट सीरीज वगैरह होते हैं, तो दिस थिंग्स विल हेल्प यू। टेक्स्ट बुक के बाद फिर हमें सेम 4th स्टेज में जाना चाहिए, पीवाईक्यू। एंड नाउ असेस कि आपका कितना % सॉल्व हो रहा है। 60-70% अब यहाँ पे सॉल्व होना चाहिए। और नहीं हो रहा है तो फिर क्या करेंगे बताओ? 5th स्टेज में रिपीट करना है। क्वेश्चन सही से आते हैं, कहीं और से नहीं आते हैं। स्टैंडर्ड है यूपीएससी में, हिस्ट्री में जाएंगे, 15 साल का पेपर उठाओ, रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत ज़्यादा आपको हर पेपर में। और दूसरी है यूपीएससी में हर पेपर में, वेदर इट इज ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ऑल द क्वेश्चंस आर मोटिवेटेड फ्रॉम करंट अफेयर्स। जैसे पिछले बार यूपीएससी में क्वेश्चन हिस्ट्री में आया था स्तूपा पे, है ना, वेदर स्तूपा इज अ बुद्धिस्ट ओरिजिन और नॉट। ए स्टेटमेंट गलत था और सारे दूसरे स्टेटमेंट सही था। एंड दिस वाज अ रिसेंट न्यूज कि स्तूपा वाज इन द प्री बुद्धिस्ट ओरिजिन था, मतलब बुद्धिज्म आने से पहले स्तूप कॉन्सेप्ट था वर्ल्ड में। और ये पिछले साल का डिबेट है, न्यूज में आता है हिंदी में। क्वेश्चन सीधे वहाँ से आ गया। मेंस में भी इफ़ यू फाइंड जीएस पेपर 1 में ऑल द क्वेश्चन, जैसे अभी बहुत सारा दंगे हो रहे हैं, तो क्वेश्चंस में भी ऑन कम्युनलिज्म, है ना। अगर मान लो पिछले साल एक चीज़ हुआ था डिबेट पार्लियामेंट में, क्या डिबेट था पार्लियामेंट में? जो अशोक स्तंभ जो है उस पर डिबेट था ना, तो उस पर क्वेश्चन आ गया यूपीएससी में। तो इफ़ यू रीड न्यूज़पेपर यू फाइंड न्यूज़पेपर में हर टॉपिक से क्या करंट चल रहा है, एंड देन रीड दैट टॉपिक इन एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, इन द हिस्ट्री। सेम विल बी इन द पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी वैसे क्वेश्चन आते हैं। ऑल द क्वेश्चन आर फ्रॉम रिसेंट मोटिवेटेड, रिसेंट न्यूज से। तो क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे? यहीं से बनाते हैं। तो इस स्टेज में और फिर से स्टार्ट हुई है, यू आर गोइंग टू क्रैक इट। बस द पॉइंट है पढ़ना पड़ता है सही से। अगर आप सही से पढ़ लिए यू विल क्रैक। मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैव डन इट, जो लोग यूपीएससी के प्रिपरेशन किए हैं। वन ऑफ माई रूममेट इज इन उत्तर प्रदेश, इज इन IAS, ये जम्मू में पोस्टिंग है। मतलब आई एम फ्रॉम साबरमती हॉस्टल ऑफ JNU। साबरमती हॉस्टल इन JNU इज ए वेरी फेमस हॉस्टल। कन्हैया वाला इंसिडेंट वहीं पे हुआ था, तो पॉलिटिकली फेमस भी है। एक मेरे कलीग है जो मेरे साथ पढ़ाते थे IP कॉलेज में, मैं IP कॉलेज में पढ़ाया हूँ हिस्ट्री, इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ वुमेन, नाम सुना आपने? दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा कॉलेज है। सो वहाँ पे मेरे कलीग एंड ही वाज आल्सो माय हॉस्टल मेट, ही वाज सीनियर इन CHS, ही इज इन IRS। उन सब से जब मैंने बात किया, मतलब दे ओनली, एक मेरे फ्रेंड थे, ही गॉट अ कॉमनवेल्थ फेलोशिप। कॉमनवेल्थ फेलोशिप का नाम सुना आपने? कॉमनवेल्थ फेलोशिप ब्रिटिश गवर्नमेंट देती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर विषय में सिर्फ एक को मिलता है, एक, वन बॉय वन गर्ल इन इंडिया। ही गॉट फेलोशिप बट ही डिडंट गो। He studied in JNU, he was doing PhD and he was teaching in Aurobindo College. He got into IAS and he is a blind person. तो हॉस्टल में इतना मेहनत किया उन्होंने। सबसे बड़ी उन सब की पॉइंट की कंसिस्टेंसी।
आपको लोग ऐसे मिलेंगे कि 1 साल आता है, प्रिपरेशन करता है, क्लियर कर जाता है। कैसे? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप टीना डाबी का वीडियोस देखो, नहीं, टीना डाबी के वीडियो देखोगे क्या बोलेंगे कि शी वाज नॉट श्योर शी विल क्लियर प्रीलिम्स, वो श्योर ही नहीं थी। तो द पॉइंट है कंसिस्टेंसी मेंटेन किया, ड्रीम था कि मुझे यही करना है, कर लिया। मतलब अगर आपको अगर आप साइड लेके नहीं चलेंगे, यू गिव 2 years, 1 साल में तो आपका प्रीलिम्स होगा, 1 साल भी नहीं बचा हुआ है। सो यू आर डूइंग अटेम्प्ट ना इन 2024 और नॉट। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, साथ में पढ़ते हैं, लेट्स डू हिस्ट्री टुगेदर। आपके और भी टीचर्स हैं, दूसरे टीचर दूसरे पेपर पढ़ा रहे हैं, आप साथ में क्लियर करिए। कोई भी डाउट सेशन और कुछ भी, वी आर हियर टू डिस्कस, ब्रिंग एनी डाउट्स, अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, हम साथ में भी सॉल्व करेंगे। वी विल टेक मेनी एग्जांपल्स एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो टुमारो वी विल मीट फॉर अर्ली मिडिवल हिस्ट्री। कल जो हम पढ़ाई करेंगे वो 750 एसपी के बाद, अपने गुप्ता वगैरह सब कर लिया होगा है ना, तो हम वो पढ़ नहीं रहे। इन विच हिस्ट्री? देखिए, ये जो 647 जो हर्षवर्धन का जो टाइम लेते हैं, ठीक है, वहां से इसलिए मानते हैं क्योंकि वो टेक्स्ट बुक लिखी गई है, जो आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा है। कौन सा टेक्स्ट बुक पढ़ा है आपने? हाँ, तो लूसेंट है, टेक्स्ट बुक है वो, एंड दैट इज रिटेड बाय फ्रॉम अ नॉर्मल बुक। ये जो हिस्टोरिकल डिबेटेड टॉपिक है, अगर आप रोमिला थापर की बुक पढ़ेंगे, पेंगुइन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना, अगर आप उपिंदर सिंह की जो बुक पढ़ेंगे, उपिंदर सिंह की बुक जो है, क्या नाम है बुक का? एंसेंट इंडिया एंड अर्ली मिडिवल इंडिया, बुक की नाम है हिस्ट्री ऑफ एंसेंट एंड अर्ली मिडिवल। सो सी डिफाइंस, तो हिस्टोरिकली कैटेगरी जो डिवाइड करते हैं, जैसे 1206 पे दिल्ली सल्तनत बना, उस समय भी नहीं लेते। द पीपल विल स्टार्ट फ्रॉम 750। सो इन दिल्ली यूनिवर्सिटी द सिलेबस इज टॉट दैट अर्ली मिडिवल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पेपर है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे आपके जहाँ भी पढ़े हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, बीटेक वगैरह किए हैं, आपके 12-13 पेपर्स होंगे बीटेक में। इस तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री में भी 15-16 पेपर्स होते हैं, उसमें से एक पेपर ही होता है अर्ली मिडिवल पीरियड, एंड दैट पेपर स्टार्ट्स फ्रॉम 750 टू 1206 पेपर स्टार्ट होता है। तो जब हिस्टोरिकल डिबेट पे जाएंगे ना, तो उसमें आपको मिलेगा दैट देयर इज अ पीरियड कॉल्ड अर्ली मिडिवल। तो अर्ली मिडिवल का मतलब हुआ ना, मिडिवल ही पार्ट है, अर्ली मिडिवल इज अ पार्ट ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। तो मिडिवल हिस्ट्री ऑफ कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम, पर आप कैटेगराइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। कैटेगराइजेशन में क्या प्रॉब्लम होगा कि मिडिवल का फीचर्स अलग होता है, ऑल द फीचर ऑफ मिडिवल हिस्ट्री वाज नॉट देयर। जैसे जेम्स मिल है, जेम्स मिल ने बोल दिया कि मिडिवल हिस्ट्री इज अ मुस्लिम हिस्ट्री इन इंडिया, मतलब मिडिवल इंडिया इज अ मुस्लिम इंडिया। तो उसके अनुसार तो हम 640 जो 7 हैं या 700 800 तो बोल ही नहीं सकते मिडिवल हिस्ट्री, क्योंकि उस समय तो हिंदू का रूल था। तो जेम्स मिल के अनुसार 1200 तक एंसेंट इंडिया हुआ, दैट इज अ हिंदू इंडिया। 1200 से 1750, और 1750 पे आप डेट बोलेंगे तो डेट ही नहीं हुआ, क्योंकि 1750 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी तो रूल करना शुरू किया 1765 के बाद, है ना, जब अधिवानी राइट उनको मिली। तो डेट इज अ वेरी क्रोनोलॉजिकल, तो लूसेंट में डेट्स पे ध्यान दे रहे हैं। इफ यू गो इनटू द डीप स्टडी, देखो हिस्ट्री में मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, है ना, आई हैव बीन टीचिंग हिस्ट्री में मेरी PhD है, तो आई हैव रीड मोर देन थाउजेंड्स ऑफ बुक्स ऑन हिस्ट्री, है ना, फॉर माई रिसर्च पे मेरी एक बुक है, आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश हुई है। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट नॉलेज, बट UPSC से आप वही चलिए जो उसमें जो दिया हुआ है। UPSC में कभी डेट नहीं पूछेगा आपसे ये सब चीज़ें, ठीक है, तो डोंट वरी। हाँ, वी विल मीट टुमारो। कोई डाउट है आपको ऑनलाइन स्टूडेंट्स? वी विल मिडिवल के लिए 2 बुक मैं सजेस्ट करता हूँ। एक तो सतीश चंद्रा की बुक है, टेक्स्ट बुक जो पहले थी मिडिवल हिस्ट्री की, और दूसरी एक है पूनम दलाल दहिया की एक टेक्स्ट बुक है, मैं टाटा मैगजीन पब्लिश करता है, पूनम दलाल दहिया, क्या नाम है बुक का? अर्ली मिडिवल एंड मिडिवल हिस्ट्री, ऐसे है ना। तो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी इन सब का भेज दूंगा, आई सेंड यू सॉफ्ट कॉपी, यू कैन बाई फ्रॉम मार्केट ऑल्सो, नोट्स भी रहेगा। तो हाँ, मिल जाएगा। सतीश चंद्रा इज अ टेक्स्ट बुक, NCERT की जरूरत नहीं है अभी, ओल्ड NCERT नहीं, द ओल्ड NCERT इज इटसेल्फ अ NCERT ऑफ
मिडेबल इंडिया। जो 2005 से पहले जो एनसीईआरटी थी ना, वो एनसीईआरटी ही online students, we will discuss the doubt tomorrow, all right, if there is any, and we will start the topic from tomorrow onwards.